Yes. Okay, good evening. We want to start today's session. And the first thing I would request to all of you is please keep a notepad. Keep a notepad beside you with a pen because I will be discussing some very important information pertaining to CAT examination. Here we are going to be dissecting the sections. Inside the sections, we are going to be dissecting the topics. So I want you to be ready with your pen and paper because we'll be discussing in deep. Time has come. It's around 60 days, a day less than 60 days, and this is the time to just be academic. There is a time to do other things as well, but now is the time just to be academic because it's CAT time. 60 days can make a huge difference. So if someone studies for a good number of hours every day for the next 60 days, so he or she at this point of time cannot anticipate or estimate what level he or she can reach because that level will be way better than what you can possibly imagine also in your head. So 60 days is a good amount of time, a good number of hours. You can do 16 to 10, you can do 16 to 7, you can do 16 to 8, 16 to 9, the number of hours that you'll be putting in, and you can see it is good number of hours. But because there are only 60 days, so we have to be very careful about what to study, what not to study. So today we'll also focus for those students who are not very well prepared. I know today we'll be having those students who are very well prepared, those students who are prepared, and those students who are, not very well prepared. So we'll be discussing about the strategy for the next 60 days for all these three types of people. But most important thing is you have to be relaxed. By being not relaxed over the next 60 days, you will just, frustrate your chances of cracking CAT further. So there is no point in having stress, feeling anxiety, thinking too much about results, what will happen. The clock is ticking. जैसे कि इंसान की मौत आ रही है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है. Please relax. What do you think is the first result of reduction in timing of CAT? 1+1+1 घंटे, ये जो अब घट के 40 मिनट प्लस 40 मिनट प्लस 40 मिनट बना है, इसमें तुम लोगों को क्या लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या हुआ? मैंने क्या किया, जो कैट के जिनको मैं जानता हूं टॉप 5 मेंटर्स हैं कंट्री के, बिकॉज ऑफ बीइंग द नेशनल डायरेक्टर ऑफ टाइम आल्सो, व्हेन आई वाज इन हैदराबाद, टाइम इज अ हैदराबाद बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन. So I know the person who started AIMCATS, the legendary AIMCATS. I talked to him, interacted with him, discussed about the change in the pattern of CAT over the last 5 years. Then I talked to the national director of time also. I talked to some like people who actually know the CAT business, and I researched the last 5 years CAT papers, topic wise, section wise, difficulty wise, level wise, with a database available to me. And I also discussed with these 5 best CAT mentors in the country that because of this change in the pattern, specifically the timing, what alteration a student requires to do over the next 60 days. So the first thing that I analyzed was EQ. EQ means emotional quotient. Because of reduction in time, you will be having both the pressure of running faster, समय घटा है, मैराथन कम स्पीड में दौड़ते, स्प्रिंट करते 100 मीटर्स का बहुत स्पीड में करते. So the first thing is reduction of time automatically means for serious aspirants that the speed will be a little fast. Like if you have to consciously understand this fact that it's a shorter game. It's like a 2020 क्रिकेट खेला है, टेस्ट का रन रेट, ओडीआई का 50 ओवर्स का लिमिटेड ओवर्स का रन रेट और 2020 का रन रेट. सो सिमिलरली अगर 60 मिनट से 40 मिनट्स हुआ है, गुड स्टूडेंट्स विल बी फास्टर इन स्पीड. पहला तो स्पीड. दूसरा, कम समय है, कम क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो कम क्वेश्चन सॉल्व भी करोगे. कम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए ना. कम क्वेश्चंस भी सॉल्व करें और उसमें अगर एक्यूरेसी भी नहीं रहे तब तो बहुत ही कम क्वेश्चंस करेक्ट होंगे. आपको स्पीड पे भी फोकस करना है
आपको एक्यूरेसी पे भी फोकस करना है. इट्स समथिंग विच विल रियली टेस्ट यू इमोशनली. गट टेस्ट करेगा आपका कि कितने स्ट्रांग है आप. क्या आप फास्ट पेपर करने के साथ साथ एक्यूरेसी इंश्योर कर पाते हैं कि नहीं. इट्स अ स्लाइटली हाई प्रेशर गेम. It's like F1 racing or fast sports. You need to be very fast at the same time. You cannot make mistakes. So please understand one thing at the beginning of this journey of the next 60 days, that you cannot in any way take stress, feel down, get depressed because of poor performance in mocks, or get affected by whatever is happening in and around your family or your friend's life. Please, the next 60 days, block it. For example, I have to take the webinar today. So even though I have a very busy day from so many calls to mails to multiple, management functional activities, still I put everything on hold so that I can research the past 5-6 years papers. I can talk to the best CAT mentors. I can talk to my 100 percentilers. I can understand what are the changes which may be suitable for someone who is aspiring for 100, someone who's aspiring for maybe 99 plus, or someone who's aspiring for 97 plus. So it took a lot of time. So sometimes when you have to do a work which is important, you need to prioritize that work. You need to put everything aside. It's like how if suppose you are having shadi in your family, or you're having festivals in your family, or you are having some medical issues with someone in your family. So everyone understands that these things are also important. But the next 60 days, if you lose focus for even 1 day or 2 days, it will have a cascading effect on the remaining days, because as you approach CAT examination, your anxiety level will go high. And if at the same time you're not practicing every day to feel confident, feel in touch with the paper practice, your anxiety level will further go high and you will frustrate your preparation. So every day, some days in the lives of some of our students might be, they have some, very important thing to take care of. But on that day also, please take out some time to study. Don't miss studying on any day, because you don't at this phase for the next 60 days want to, have even few hours where you are not practicing CAT material. And you will see how it will build up. Next 60 days, every few hours, first half, few hours, second half, next day, next to next day, it'll keep building up and it'll bring down your anxiety levels. Because छोटा पेपर है, कम क्वेश्चंस हैं, कम समय है, तेजी से पेपर करना है. पहले वार्म अप करते थे, तुम्हें पता है, एक हमने डिस्कस किया कि जब 1 घंटे का पेपर होता था सेक्शन में, तो बच्चे ना, बहुत सारे बच्चे 5-10 मिनट वार्म अप करते थे. वार्म अप का क्या मतलब होता है? बहुत लोग आप में हैं जो पहली बार कैट लिखेंगे. यू विल बी टेकिंग कैट फॉर द फर्स्ट टाइम. So of course your anxiety level will be higher than those who have already taken the examination. It's your first experience. Now, because of it being the first experience, the first few minutes maybe you will take some time to settle down. It's like how in cricket you are the opening batsman and you are facing bowlers like Malinga or Shoaib Akhtar, and so some maybe few deliveries you will take to understand the pitch, understand what kind of bowler is he, what kind of speed, what kind of bounce is there. Similarly, in the CAT paper, we used to say and we used to observe that even those guys who get 100 percentile, they take some time to warm up. But now, because the format has changed, you cannot warm up. It's like 2020. You cannot warm up because you have to go and hit. So the first thing that you have to understand is that आपको warm up करने का भी उतना मौका नहीं मिलेगा, जिसके कारण आपको mentally tough होना होगा, emotionally tough होना होगा. So you please stop taking stress, because stress is not going to help. Rather than that, start studying, start putting in hours, understand that, okay, fine, these are the 2 things I have to manage. I have to work on speed, I have to work on accuracy, and start your preparation, with this thought. Warm up time नहीं है, लेकिन तभी पेपर स्कैन करना होगा. पेपर स्कैन करने के 2 तरीके होते हैं. अब 40 मिनट है, तो जनरली लोग बोलते हैं कि आप
कोई भी सेक्शन करते हैं तो तुरंत आप जंप मत कीजिए। सेक्शन करने के लिए आप उतावले इतने नहीं हो, जंप नहीं करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन सॉल्विंग पे टेक सम टाइम टू स्कैन द एंटायर सेक्शन, दैट है क्या ये सेक्शन में। मैथ्स है, इतने सवाल है, एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, तो 1 टू ले तक लास्ट में है क्या, व्हाट इज द पेपर लाइक, मतलब व्हाट इज द पेपर लाइक। So generally this activity can take 2 to 3 minutes at least if it is a pond, because ये DILR में तो आप नहीं यूज कर सकते हैं। DILR में you'll have to read the set, it'll take some time. Similarly in RC you'll have to read the passage to an extent. This we're talking about pond, that generally in pond everyone scans the paper. A second approach, because now some of the students might feel that okay, earlier 60 minutes was there, so in warm up I'm scanning the paper, I'm sipping my water, I'm relaxing to an extent, I'm understanding, I'm trying to get in the gear, you know. But now with 40 minutes, can I do the same kind of scanning? So yes, if you are very fast, and no, if you are not very fast. So another good strategy is that you take a block of questions. So I talked to some of the 100 percentilers and some of the people who are the people who make your AIMCATs for the past 10 years. They said that the way we go about in the paper is that we suppose take 5 questions, 6 questions, and out of those 5-6 questions we decide which is easy, which is okay doable but can take some time, and which is challenging. And then out of those 5-6 questions, because easy to go through next 5-6 questions, but if you try clicking and going to maybe 15th question, 20th question, by that time you'll forget what is there in the first, second, third, fourth question. It's very normal. What you can do rather is, आपके पास मानिए 40 minutes तो है। Now if proportionately IMINDOR decides to reduce the number of questions, so maybe the breakup will be 24, 22, 24, adding up to 70 questions from 100 questions, because they have reduced the time by 1/3. 60 minutes था, 40 minutes किया, 1/3 reduce कर दिया। तो आप total number of questions को भी 1/3, 30 question reduce करके 70, 24, 22, 24 में। This is not a surety, but this is the this is having way higher probability, is having a very high probability of coming in the real CAT examination. So 24, 22, 24 questions are there. So suppose 24 questions are there. You can easily divide 24 questions into 4 blocks of 6 questions. And out of these 6 questions, the first 6 or the next 6 or the third last 6 or the fourth 6, you can target them as a block. Inside these 6 questions, so you read all these questions. Suppose you just want to read all these 6 questions. And then you decide which is easy, which is doable, which is challenging. Because even though the number of minutes have reduced, your test taking strategy will not change. You cannot follow this policy that I'll try to do all questions. Even someone who wants to get 100 percentile cannot try this, that I'll start from the first question, or wherever I'll try to solve every question. I'll read, I'll try to solve. No, this does not work. Especially समय घटा है, तो टाइम मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंट हुआ है। टाइम मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंट हुआ है, इसका ये मतलब है कि क्वेश्चन सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो आप करते हैं वो अब सबसे इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट हो गया। बिना ब्लॉक्स में डिवाइड किए हुए, कुछ टॉपर से मैंने बात की, वेटरन कैट वेटरन से मैंने बात की, तो उन लोगों ने बोला एक 20+20 का हम लोग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। 40 मिनट है, हम 20+20 मिनट्स की स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, जहां फर्स्ट 20 मिनट्स में हम इजी डुएबल पे टारगेट करेंगे और सेकंड 20 मिनट्स में डुएबल और चैलेंजिंग को टारगेट करेंगे। What separates good performance in CAT from others is their question selection, is the strategy where they try to do it in multiple rounds. तो पहले चलो 3 राउंड था, 40 मिनट 3 राउंड तो नहीं कर सकते, 2 राउंड में पेपर करना, ब्लॉक्स में सॉल्व करना, कि क्वांट है तो हम क्वांट में चलिए 5, 6, 7 क्वेश्चन के ब्लॉक बनाए और उसमें हम सेलेक्ट करें कि इसमें क्या, नहीं तो दिक्कत क्या होगी तुम्हें, तो या फिर लगेगा सारे ही क्वेश्चन छोड़ दो, या फिर लगेगा सारे ही क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, और 40 मिनट यूं निकल जाएगा। स्ट्रैटेजी के साथ नहीं बैठोगे तो 40 मिनट यूं निकल जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। सो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मानिए 24 सवाल मैथ्स में आ रहे हैं, तो आप उन 24 सवालों में ब्लॉक्स बनाएं, ताकि जो आपको लग रहा है दूसरे, इट्स अ रिलेटिव। सो हाउ डू यू अराइव एट क्वेश्चन सिलेक्शन? One of the most important thing is it's a relative comparison.
आप जब तक एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से नहीं कंपेयर करोगे, आपको कैसे पता कि कौन सा करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए? सो ए, यूज दिस स्ट्रैटेजी. Second, DILR. So in DILR also you should try to do it in 2 rounds at least. 40 minutes है, 20 plus 20 का लिया, कितने सेट एक्सपेक्ट कर रहे हो? चलो 5 सेट मानो एक्सपेक्ट कर रहे हो. वर्स्ट केस में बहुत भी आएंगे क्वेश्चन तो 6 सेट, उससे ज्यादा तो नहीं आएंगे. तो if suppose the division of 5 to 6 sets is easy to, doable to and challenging to, your selection of sets should be as such that in the first 20 minutes you should be able to select the easy, and if you are not able to even find easy, doable set. doable मतलब चलो मुश्किल भी हो लेकिन कर लेंगे, कर सकते हैं. And try to avoid, like in this year's CAT examination, because time is less, question selection becomes more important. आप कोई गलत क्वेश्चन में, गलत सेट में फंस गए तो बस घंटी बज जाएगी. So in DILR, I think in this year's paper, CAT 20 paper, which one particular set not to attempt is the first big challenge. कि वो जो 5 DILR के सेट आए या 6 DILR के सेट आए, वो 1 या 2 DILR सेट जहां आपका 100% बहुत टाइम जाने वाला है, उसको पकड़ना बहुत जरूरी हो गया है इस पेपर में. BARC की बात करेंगे हम. So one question which can come to your mind is that क्या सेम प्रोपोर्शन में BA और RC दोनों से क्वेश्चंस कम होंगे? यानी 2:1 का रहता है RC और BA का बहुत सालों से. सो अब क्वेश्चंस कम होंगे, मानिए 34 से 24 क्वेश्चंस हो रहे हैं. सो क्या ये BA से कम होंगे, RC से कम होंगे? क्या छोटे पैसेजेस आएंगे? क्या कम नंबर ऑफ पैसेजेस आएंगे? क्या BA बढ़ जाएगा? अच्छा, IIM इंदौर कर रहा है, उनके जो कैट कन्वीनर हैं वो जो करा रहे हैं, he is known to try new things, कहीं CR ना डाल दे, strengthening weakening argument, BA ना बढ़ा दे. सो ये बहुत तरह के सवाल आपके मन में आ सकते हैं, लेकिन आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी सेम रहेगी. सबसे पहले BA नहीं करते, RC करते हैं. क्यों? आप लास्ट के 2 मिनट में, 3 मिनट में, 4 मिनट में, क्या अगर आपके पास BA नहीं बचा है करने को, तो आप RC कैसे पढ़ भी लेंगे? किस? So it's always advisable, first you do RC, then you do BA, and in this also you should have a time out. Now what is the concept of time out? As we are discussing, time कम हो गया है, क्वेश्चंस कम हो भी सकते हैं और हो सकता है नहीं भी हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है. ये मैं आपको एक बता रहा हूं, सबसे ज्यादा आने का पॉसिबिलिटी है 24, 22, 24 का, लेकिन हो सकता नहीं आए. हो सकता है 70 की बजाय 75 आ जाए, 80 आ जाए, यू नेवर नो. बट हाँ, आई डोंट थिंक कि 100 आएगा या फिर उस तरह का बहुत ज्यादा आएगा, बिकॉज फिर कोई सेंस नहीं बनता है. इट डजंट मेक सेंस एक्चुअली. सो रिड्यूस्ड टाइम, reduced questions, question selection becomes very very important. You cannot get stuck anymore. पहले तो चलो आप you're getting stuck at 60 minutes, so आप मेकअप कर सकते हो, तो मेकअप टाइम नहीं है इस बार. So you cannot get stuck in a wrong set or a wrong passage or a wrong question. Second, time per question is very important. Time spent per question. But ये mathematically नहीं कर सकते. मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि 40 मिनट है, चलिए 24 सवाल आएंगे, तो अगर 40 मिनट है, 24 सवाल आए हैं, तो एक सवाल पे 100 सेकंड, एक सवाल पे 100 सेकंड होगा, तभी तो 40 मिनट हुआ. अब एक सवाल 100 सेकंड या फिर 120 सेकंड यानी कि 2 मिनट के बाद आप छोड़ सकते हो, ये सोच के आप नहीं चल सकते. क्यों? You have easy, you have doable, you have challenging. Of course, the time taken to solve an easy question will be way less in comparison to the time taken to solve a doable, in comparison to the time taken to solve a challenging one. So this strategy that 2 मिनट हो गया क्वेश्चन छोड़ दें, ये तो सही स्ट्रैटेजी नहीं है. बट हाँ, अगर उतना टाइम लग रहा है तो मतलब पहले राउंड के लिए क्वेश्चन नहीं बना है, और या फिर आपने पेपर पूरा नहीं स्कैन किया है और बहुत टाइम लग रहा है, 2 मिनट से ज्यादा आपको मैथ्स के क्वेश्चन में, तो मे भी आप उसको बाद में भी कर सकते हैं. इसलिए ब्लॉक, डू इट इन ब्लॉक्स हेल्प यू इन अ रिलेटिव कंपैरिजन. एंड इट इज नॉट लाइक कि आपको एक बार में पूरा सेक्शन स्कैन मारना है या समझना है या देखना है. दैट इज आल्सो नॉट. पहले ऐसा करते थे जब 50 क्वेश्चंस आया करता था वे लॉन्ग अगो, दैट बच्चे बीच से शुरू कर रहे हैं या पेपर के आखिरी से शुरू कर रहे हैं, एंड से.
कुछ लोग बोलते थे अरे यार पेपर के लास्ट में, सेक्शन के लास्ट में जो 4 क्वेश्चन थे, रोमन न्यूमरल का क्वेश्चन था 4 क्वेश्चन, वो बहुत इजी था। बट देन अगर मेरे, नाउ दैट द पेपर इज कंप्यूटर बेस्ड, मेरे में वो 4 क्वेश्चन लास्ट है, तो तुम्हारे में ऑर्डर चेंज होगा, बीच में होगा, दूसरे में ऑर्डर चेंज होगा, उसको शुरुआत में होगा। तो शुरुआत से करते हैं आखिरी से करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लॉक बना के करना बहुत जरूरी है। फॉन्ट में ब्लॉक बना के करना जरूरी है। डीएलआर में 20+20 का आप ले सकते हो फॉर्मेट, जिसमें आप कोशिश करेंगे कि जो वो 1 से 2 सेट बहुत ही खराब है उसको आप अवॉइड करें। इजी वालों को पहले करें, फिर डुएबल को करें, और चैलेंजिंग में 2 सेट्स आए तो एक कोशिश करें उसे करने का। बीएआरसी में आरसी आप पहले करेंगे, लेकिन एक कट आउट टाइम होना चाहिए कि अगर 40 मिनट है तो 25 मिनट के बाद वाइंड अप करना शुरू कीजिए आप आरसी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इफ सपोज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन बीए is 7 or 8, suppose it is 8, take at least 1 minute to solve every question. It is 8 minutes. You will take 2-3 minutes buffer time, so 11-12 minutes. So after 25 minutes out of 40 minutes का section, 25 मिनट के बाद, ऐसा तो नहीं कि एग्जैक्ट 25 मिनट पे आपका आरसी खत्म हुआ है, क्वेश्चन खत्म हुआ, डिपेंड करता है पेपर पे। आफ्टर 25 मिनट्स प्लीज स्टार्ट वाइंडिंग अप आरसी, गो टू बीए। फिर टाइम बचेगा तो फिर आरसी पे आ जाना, बीए देख के एक बार। So this is something which is very very important. Then another question, students sometimes they get confused, they think that टीटा है, मुश्किल है, ऑप्शंस नहीं है, तो पहले एमसीक्यूज करते हैं फिर टीटा करते हैं। तो क्या ये स्ट्रैटेजी सही है, पहले एमसीक्यूज करना और फिर टीटा क्वेश्चंस करना? तो नहीं, ये गलत स्ट्रैटेजी। क्यों? अरे वो टीटा, किसी का पैराजम्बल्स अच्छा है तो उसके लिए क्यों मुश्किल होगा टीटा? किसी का अरिथमेटिक बहुत स्ट्रांग है, उसका कुछ टीटा क्वेश्चन आया हुआ है तो क्यों नहीं उसे सॉल्व करेगा? तो टीटा क्वेश्चन को भी आप नॉर्मल एमसीक्यू जैसा ही ट्रीट करेंगे, ब्लॉक्स बना के आप जो करेंगे। फर्क सिर्फ मतलब आपको देखना क्या है कि वो टीटा क्वेश्चन क्या आपके कंफर्ट लेवल के टॉपिक से है कि नहीं। दूसरा, डिफिकल्टी लेवल क्या है। अगर डिफिकल्टी लेवल इजी है, डुएबल है, तो ऑफ कोर्स यू विल ट्राई टू डू द टीटा एज वेल। one stupid question can arise in your head that sir थीटा का तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो गेस क्यों नहीं करते? ये आप कुछ भी करोगे, थोड़ा इंटेलिजेंट गेस करोगे, क्योंकि वहां आंसर तो दिया नहीं, तो कुछ एबीसी कुछ तो नहीं टाइप कर दोगे, कुछ तो इंटेलिजेंट गेस करोगे, उसमें टाइम तो लगेगा। इस पेपर में टाइम कहाँ है, 40 मिनट से तुरंत खत्म हो जाते हैं। So you have to understand this time you won't get time to sit, relax, do guessing and all. It's a paper which will finish in a very less amount of time. Your question selection has to be very good from the word go. There is no time to warm up. You have to be in the action mode from the very first minute. So it's very very important that when you are even solving the paper, don't get disheartened. पहले 7 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चंस के गुच्छे में नहीं मिला अच्छा क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट ब्लॉक में मिल जाएगा 6 का, उसके मतलब डोंट लूज होप। पेपर तो है ना, मतलब सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ब्लॉक्स बना के करने से फायदा है कि कोई भी ब्लॉक छूटता नहीं, आप सारे ब्लॉक्स में एक ना एक, मतलब लास्ट वाले ब्लॉक को भी आप अच्छे से समझ तो पाओगे ही, और कम से कम उसके इजी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाओगे। some of the things which are very very important because we are in the last 60 days. Okay, I have jotted down few points. जैसे ही शुरू हुआ मैं सोचा कि there are 3 questions, 3 students who asked 3 questions. 3 students are asking questions. We will respond to all the questions. Audio in mobile is not enabled. This is what you have. Everyone is having proper like there is no audio or video problem. Anyone having audio video problem? Good, very good. Okay. What is the expected level of difficulty? There is a very high probability that the expected level of difficulty is the same. So you don't expect the paper to get very easy or very very difficult. It's going to be of the same difficulty level. In question selection, 3 of the most important things which you have to watch out because paper छोटा हो गया है. सबसे पहले easy question नहीं छूटे, क्योंकि questions कम है तो easy questions भी कम है. आप उन easy questions को छोड़ोगे, आपको पेनल्टी लगेगा. पेनल्टी का क्या मतलब है? अरे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे आसान क्वेश्चन में. दूसरा, सिली मिस्टेक या फिर गलती का जुर्माना बहुत महंगा, क्योंकि कम क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट उसमें भी गलत,
तो स्कोर में नेगेटिव, एंड टोटल स्कोर तो ऐसे भी पहले से कम ही आएगा बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए हैं. सो नेगेटिव इज गोइंग टू कॉस्ट यू मोर. एंड एज आई सेड, if you get stuck in a set or a question, gone, this time you are gone. Please focus on question selection. It is very, very important. 2020 game, very helpful. Doing paper in multiple rounds ensure that ये जो कुछ sets या कुछ question आपको पूरी तरह से जकड़ लेंगे और आप उनसे बाहर नहीं निकल पाओगे, उनको अवॉइड करने में बहुत हेल्प करता है. प्लस you will have to take a faster call to choose or leave a question. जैसे अभी क्या है, क्वेश्चन पढ़ा, थोड़ा फिर सोच रहा है कि करे कि नहीं करे, लेकिन तुम्हें थोड़ा जल्दी कॉल लेना होगा, करे कि नहीं करे. ओवरऑल your speed has to increase, my students. Accuracy has to improve. Your EQ has to be better, and at the same time the senses, जो अपने senses हैं, उनको थोड़ा आपको faster use करना पड़ेगा. Then guess work तो बिल्कुल ही नहीं करना है. Time management is the most important now in the paper. Time spent per question. So आप जब कोई mock लिखते हो, MCAT लिखते हो, so you cannot take this thumb rule की 100 सेकंड पार हो रहा है तो क्वेश्चन छोड़ दें. बट आपको अपने एनालिसिस में, MCAT में भी एनालिसिस में आप देखोगे आ जाता है टाइम स्पेंड पर क्वेश्चन. जिस क्वेश्चन में या फिर जिस तरह के सेट में आपको बहुत टाइम लगा है, उसको आप स्पेशली अच्छे से एनालाइज करो कि पेपर में फिर ऐसा नहीं हो. इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेलेक्टिव प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे अभी हम लोग लंबा बात करने वाले हैं. पेन पेपर लेके रखना, काफी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं आपको. Okay, so let us come to something very very important. I hope everyone is carrying a pen paper. Chalo, I am going to discuss the composition, the breakup of questions for the past 4 years. पिछले 4 सालों में हम सोचिए मैथ्स को उठाएं तो AMA हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो या फंक्शंस हो या ज्योमेट्री हो, ग्राफ्स हो, इंडिसेस हो, इनइक्वालिटीज हो, लॉगरिथम्स हो, मैक्सिमा मिनिमा हो, मेंसुरेशन हो, नंबर्स हो, PNC हो, PPL हो, प्रोग्रेशंस हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन हो, सीरीज हो, SI/CI हो, सिंपल इक्वेशन हो, स्पेशल इक्वेशन हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, टाइम एंड वर्क हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, वेन डायग्राम हो. क्या परसेंटेज ऑफ द पेपर आया इन टॉपिक से? आप लोग भी लिखना स्टार्ट करेंगे बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि आप जब कैट की तैयारी करते हो तो मैथ्स की अगर हम बात करें, बहुत कम चीजें जो छोड़ सकते हो. लाइक पीपल इफ दे आर थिंकिंग दैट अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन है, PNC प्रोबेबिलिटी है, नंबर्स है, चलो इसमें इन पांचों में एक दो छोड़ देते हैं. मैं तुम्हें अभी डिस्कस करके बताऊंगा कि सबसे ही आता है, मतलब क्या छोड़ोगे क्या, व्हाट विल यू लीव. फॉर एग्जांपल AMA की हम बात करें, एवरेजेस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन. पास्ट 4 इयर्स में वेटेज की अगर बात करें AMA की, पास्ट 4 इयर्स का एवरेज वेटेज है 8%, जो कि अच्छा खासा है. 8% ऑफ द पेपर, 8% यानी क्लोज टू 10% ऑफ द मैथ्स पेपर AMA आता है लास्ट 4 साल से ऑन एन एवरेज. लेकिन इन 4 साल में एक साल में 6% भी आया जो कि मिनिमम है, एक साल में 15% भी आ गया. सोचिए 15% ऑफ 34 क्वेश्चन जो पहले कॉर्ट में आ रहे हैं लास्ट 4 इयर्स में, वो AMA से था. तो इसका मतलब क्या है कि कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है. देखो एवरेजेस, मिक्सचर्स, एलिगेशन लास्ट 4 इयर्स ओनली. सम इयर्स इट इज 6%, सम इयर्स इट इज 15%. इट्स अ ह्यूज फ्लक्चुएशन. ज्योमेट्री 4 ईयर का एवरेज 13% है. ये बम्पर टॉपिक है. 13% एवरेज बहुत होता है. तो कोई भी अगर आप लोगों में बहुत ही अक्लमंद आदमी है और ज्योमेट्री छोड़ने का सोच रहा है तो प्लीज डोंट डू दैट. 13%, that is close to 15% of the paper. Average of the last 4 cats is close to 15%, where the minimum has been 9%, which is not bad, and the maximum has been 18%. 18% यानी कि लगभग 20%, यानी कि 1/5 of the paper सिर्फ ज्योमेट्री. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक.
टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 8% 4 साल का एवरेज है, मिनिमम क्या है 7% ऑफ द पेपर, मैक्सिमम 10%, तो ऑफ कोर्स छोड़ नहीं सकता ना 10% ऑफ द पेपर, तो बहुत 10 into 10 is 100%, तो यानी कि 10 ही भाग है पेपर के, अगर उसमें से एक भाग सिर्फ टाइम डिस्टेंस था तो बहुत इंपॉर्टेंट था। नंबर्स, मुझे भी ऐसा गलतफहमी था कि नंबर्स उतना नहीं आता है, फिर मैंने बात किया एक बहुत महान गुरु से, कैट गुरु से, उसने मुझे समझाया कि नंबर्स जो है उसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते, नंबर्स जो है उसको अलजेब्रा में भी नंबर्स रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सब में, मतलब अरिथमेटिक में तो आता ही है, तो नंबर्स का यूजेस जो है वो ऐसा उसको आइसोलेशन में नहीं देख सकते। फॉर एग्जांपल किसी चीज का पावर 37 माइनस किसी चीज का पावर 58 डिवाइडेड टू डिविजिबिलिटी पूछे, रिमाइंडर क्या होगा, इस तरह के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो डोंट लिमिट नंबर्स, नंबर्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है बिकॉज उससे बाकी जो इंपॉर्टेंट मैथ्स के टॉपिक से उसमें हेल्प होता है। नंबर्स का लास्ट 4 इयर्स का एवरेज है 8%, जो कि बहुत अच्छा है, मिनिमम लेकिन 3% भी गया है, यानी कि एक सवाल, बट मैक्सिमम 12% भी गया है, तो नंबर्स नहीं छोड़ सकते। पीपीएल 7% प्रॉफिट लॉस, 7% एवरेज है 4 साल का, मिनिमा है 1%, मैक्सिमा है 13%, यानी कि 13% एक साल में आया था पीपीएल का, एक साल में 1% आया था, मतलब नहीं आया। टाइम एंड वर्क एवरेज 6%, मिनिमम 3%, मैक्सिमम 9%। लॉगरिथम्स 5% 4 ईयर का एवरेज, मिनिमम 3%, मैक्सिमम 7%। प्रोग्रेशन 4 year average 5%, minimum 3%, maximum 7%. RPV, that is ratio, proportion, variation. Average 4%, minimum 3%, maximum 6%. Functions, जो functions आप पढ़ते हो, functions average 4%, minimum 0, एक साल एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मैक्सिमम एक साल 6% आया। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे ना, ये छोटे छोटे टुकड़ों से पेपर बन रहा है, सबसे थोड़ा थोड़ा आ रहा है, सबसे थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो आप कुछ छोड़ते हो तो आपको नहीं पता उस साल वो 6% आएगा, 15% आएगा, 18% आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 4% है एवरेज 4 साल का ऑफ द पेपर, मिनिमम 3%, मैक्सिमम 7%, यानी एक साल 7% भी था। इंडिसेस लॉग सर्च जो इंडिसेस होता है, एवरेज है 3%, मिनिमम 1%, मैक्सिमम 4%। मेंसुरेशन ज्योमेट्री अलग था, जो सबसे हैवी वेटेज रखा था, 13% 4 ईयर का एवरेज है, जहां एक साल 18% पेपर भी ज्योमेट्री था। अब हम बात कर रहे हैं मेंसुरेशन की, 3% एवरेज है, मिनिमम 1%, मैक्सिमम 6%, तो इसको आप ऐड कर दोगे ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, इट बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पीएनसी, मुझे भी पीएनसी अच्छा नहीं लगता है, मुझे पता है बहुत सारे नॉन इंजीनियर्स हैं, दे डोंट लाइक पीएनसी बिकॉज कभी कभी गलत हो जाता है, समझ नहीं आता है, क्या छूट गया एक पर्टिकुलर वे। पीएनसी का 4 ईयर का एवरेज है 3%, जो कि बहुत ही कम है, मिनिमम है 0, यानी कि एक साल 0 क्वेश्चन आए थे, और मैक्सिमम है 6%। तो 6% यानी कि सोचो इस साल 6% आ गया, 24 सवाल हम कर रहे हैं, 24 सवाल का 6% कितना होगा, कैलकुलेट करो, 24 सवाल का 6% क्या होगा, व्हाट इज 24 into 6/100, व्हाट इज इट, 2-3 सवाल आएंगे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम मुझसे पूछो कि सर अभी मैं कैट की तैयारी शुरू कर रहा हूं और मेरे पास उतना टाइम नहीं है, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हूं या फिर मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, तो कैसे शुरुआत करूं, तो मैं बोलूंगा कि बेटा अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन पक्का करो, ये दो टॉपिक को पहले चालू करो, ये दोनों को अच्छे से करो, फिर अलजेब्रा करो, फिर पीएनसी करो। दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट इफ यू डोंट हैव दैट मच टाइम नाउ। बट अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत बड़ा परसेंटाइल एम करो, तो आपको सभी करना चाहिए, बिकॉज आप देख रहे हो टिटबिट से ही पेपर बन रहा है, ज्योमेट्री छोड़ के एंड मे बी टाइम डिस्टेंस एमए छोड़ के, बाकी सभी 3%, 5%, 5%, 6%, 6%, 7%, एसआईसीआई 3% एवरेज है, मिनिमम 0, मैक्सिमम 6%। सिंपल इक्वेशन एवरेज 2% है, मिनिमम 0, मैक्सिमम 4%। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एवरेज 2% है, मिनिमम 0, मैक्सिमम 3। तो हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ सकते हो अगर नहीं, तुमसे नहीं हो पा रहा है, टाइम नहीं हो उतना, बट तुम जितना छोड़ोगे ना, ये टाइनी टाइनी ब्लॉक्स जो हैं वो कम होते जाएंगे। इट इज बट ऑब्वियस, ऐसा नहीं कि पेपर डूब जाएगा। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की,
सो ट्रिग्नोमेट्री के पिछले 4 साल में एक ही सवाल आया है। 4 साल जो हम कैट का ले, 16 ले, 17 ले, 18 ले, 19 ले, 1 question has come from trigonometry, but maybe 2 questions would come this year. If 2 questions would come out of 24 questions, तो बहुत बड़ा हो गया ना। 2 out of 24, that is 1 by 12. 1 by 12 is 8.33%, यानी close to 10% वेटेज हो गया। तो ये मुश्किल है किसी चीज को छोड़ने में। ग्राफ्स, बहुत लोगों ग्राफ्स में बहुत दिक्कत होती है। सेम एक क्वेश्चन आया हुआ है पिछले 4 सालों में, तो वो भी एक है। वेन डायग्राम 1% 4 year एवरेज, मिनिमा 0, मैक्सिमा 3%। सेम विद सीरीज, एवरेज 2%, मिनिमम 1%, मैक्सिमम 3%। इनइक्वालिटीज, 4 year एवरेज 2%, मिनिमम 0, मैक्सिमम 3%। व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग इज दैट आप कैट में किसी एरिया को एक साथ नहीं ले सकते। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि अरिथमेटिक को हम अलग देखेंगे और अलजेब्रा को हम अलग देखेंगे, ये मुश्किल है। क्योंकि अब अरिथमेटिक में ही सिंपल इक्वेशन है, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, एवरेजेस मिक्सचर एलिगेशन है। तो बहुत सारे टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। और इसमें मैंने क्या ऑब्जर्व किया है पूरे कैट के क्वेश्चंस की जो ब्रेकअप है पिछले लास्ट के 4 साल में, कि ये सब छोटे छोटे करके मिलते जा रहे हैं। मतलब आप कुछ छोड़ोगे तो कुछ छूटेगा। प्लीज स्लो डाउन, थोड़ा धीरे बोलते हैं। ओके, यू कैनॉट अफोर्ड टू लुक एट broad classification in maths. You cannot say that functions and graphs, quadratic equations, special equations, functions and graphs, indices, logs and surds, ये सब अलजेब्रा में आते हैं। तो आप इसको पूरा अलजेब्रा लेके नहीं चल सकते, क्योंकि जब ये टूटते हैं तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स बनते हैं, और ये सारे छोटे छोटे टॉपिक से थोड़े थोड़े एक दो क्वेश्चंस आते हैं, उससे पूरा पेपर बन जाता है। आपको बहुत बेवकूफ बनाएंगे कि ये पढ़ लो तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं, मेरे पास है ब्रेकअप है, ऐसा नहीं काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्री मेंसुरेशन, आप जब 2 बड़े एरियाज को मिलाओगे, हाँ, तब थोड़ा आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि हाँ कुछ तो हम देख सकते हैं। बट देन अगेन आपको ये नहीं पता कि इजी, डुएबल एंड चैलेंजिंग का क्या ब्रेकअप होने वाला है विद रिस्पेक्ट टू दीज टॉपिक्स। अगर मानिए उस साल अरिथमेटिक ज्योमेट्री से भले क्वेश्चंस तो आएंगे ही अच्छे खासे, मुश्किल क्वेश्चंस आ गए, और आसान जो क्वेश्चंस थे आपके ये सब कोऑर्डिनेट का बेसिक क्वेश्चन की डिस्टेंस दिया है, कोऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट दिया है, डिस्टेंस बताओ, हाइट्स एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन कुछ आसान सा आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सवाल आसान से आ गए, पीएनसी का 1-2 सवाल आसान से आ गया। तो अगर आप इस तरह से देखोगे तब तो प्रॉब्लम। अच्छा, मैंने एक और चीज नोटिस की कि प्रोबेबिलिटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी इवन तो नहीं है तब भी पढ़ना होगा, बिकॉज 1-2 क्वेश्चन, द प्रॉब्लम इज दैट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड रिड्यूस, because of which the value of that 1 or 2 question is very very high now. Topics which you don't find very easy to comprehend, the right approach can be कि आप पीएनसी प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स पढ़ें, कम से कम ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स पढ़ें कम से कम, ताकि आसान क्वेश्चन आए कम से कम कर लें। लेकिन अरिथमेटिक हो गया, ज्योमेट्री मेंसुरेशन हो गया, इसमें आप अच्छे से करें कि उसमें ज्यादा छोड़े नहीं सवाल। फॉर मी, आई एम नॉट आस्किंग यू टू लीव एनी टॉपिक, but if you ask me to prioritize, I would say arithmetic, not even arithmetic first, I would say arithmetic, geometry, mensuration first as a, if you have to club, because again arithmetic बहुत सारे topics और algebra भी बहुत सारे topics, geometry, mensuration भी बहुत सारे topics, and the topics बहुत सारे हैं, सब topics बहुत सारे हैं, आप बहुत छोड़ नहीं सकते हो। अगर बहुत मजबूरी हुई तो आप क्या करोगे? आप चलो ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ दो, प्रोबेबिलिटी छोड़ दो। बट इससे ज्यादा अगर आप छोड़ने लगोगे इन योर प्रिपरेशन, देन यू विल पे अ पेनल्टी, बिकॉज जैसा मैंने आपको बोला, छोटे छोटे एक्सेप्ट ज्योमेट्री which is having an average of 13%, and in 1 year 18% out of the entire section was geometry. If I attach mensuration to it, so it's coming to 20% max and maybe 15% plus. Apart from that, there is no particular area which is having a lot, but yes, if you take again TND, time and distance, AMA, PPL,
टाइम एंड वर्क, SICI, ये सब को तो वो बड़ा बन जाता है। लेकिन अगर हम फिर वही लॉजिक अलजेब्रा में भी यूज कर सकते हैं कि सर अगर वैसा है तो आप लॉगरिथम्स हो गया, प्रोग्रेशन हो गया, फंक्शंस हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इंडिसेस हो गया, और फिर सीरीज हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, ग्राफ्स हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, इन सबको हम जोड़ेंगे तो फिर ये भी बहुत हो जाता है। सो प्लीज know that selective preparation strategy is not a good option, and plus you cannot afford to leave easy questions in this paper because the time has reduced, the number of questions have reduced, so you cannot afford to leave, you cannot afford to skip। तो आप ऐसा नहीं कर सकते ये टॉपिक नहीं पढ़ा चलो छोड़ दो ये 3 क्वेश्चन जो है, नहीं कर सकते, पूरा पेपर खराब हो जाएगा। ये क्लियर है आप लोगों को? This thing is very very clear to all of you? Okay, good. So मैथ सब पढ़ना है, बहुत मजबूरी है तो चलो कोऑर्डिनेट, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी छोड़ दें अगर बहुत तकलीफ हो रही है। अलजेब्रा मुश्किल लग रहा है तो चलो 1-2 टॉपिक जैसे ग्राफ हो गया या कुछ ऐसा फंक्शन हो गया जो तुम्हें 2-3 सही नहीं लग रहे हैं, चलो तुम छोड़ सकते हो, उससे ज्यादा नहीं छोड़ सकते। और फिर जो बच्चे अच्छा लाना चाह रहे हैं, 99 परसेंटाइल प्लस लाना चाह रहे हैं कॉर्ड वेब को, तो कुछ भी नहीं छोड़ सकते हैं, सब पढ़ना होगा। Less number of questions, because of this more the reason that you'll have to read everything. I'll take a water break, you guys can also take a water break. What do you say, Sarthak? Good composition, no? Sir, please repeat the breakup. Please share the breakup over mail ताकि मुझे जेल हो जाए। नहीं, एक आदमी तो गया है जेल, तुम लोग चाहते हो मैं भी जेल चला जाऊं, क्योंकि ये ऑनलाइन कैट है और इसके क्वेश्चन डिस्कस करना और ये सब डिस्कस करना इलीगल है, यू नो। आई डोंट वांट टू गो टू जेल, इट्स नॉट नाइस प्लेस। ओके, कमिंग बैक, कम क्वेश्चंस है ना, तो जैसे वो कहावत नहीं है बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो कम सवाल में क्या ही मतलब पिक एंड लीव करोगे, तुम्हें पढ़ के सब जाना होगा। और ये जो ब्लॉक वाला आइडिया है, 2020 वाला आइडिया है, उसी से तुम्हारा पार लगेगा इसमें। ओके, ओनली दिस इज फॉर ओनली दो स्टूडेंट्स जिनका टाइम का मटेरियल खत्म हो गया। टाइम का मटेरियल वही लॉट 1 है, फिर एडवांस लॉट को हम लॉट 2 कहते हैं, और फिर सेक्शनल टेस्ट है आपके स्टूडेंट होम पेज पे, और सैमकैट्स है आपके स्टूडेंट होम पेज पे जो फुल एंड टेस्ट होते हैं, और एमकैट्स है। अच्छा खबर क्या है, ना कि सिर्फ जो बचे एमकैट्स, सैमकैट्स और सेक्शनल टेस्ट हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है नए पैटर्न पे, जो आपके पुराने भी एमकैट्स, सैमकैट्स और एडवांस सेक्शनल टेस्ट हैं उन सबको भी नए पैटर्न में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, so that those students who have missed, you know, the SAMCATs, AIMCATs, or they haven't taken sectional tests, they can take it in the new format. As well as even if those some students have taken those tests and they want to revise, they get to take it in the new format. So that is one very very you know good news. अगर आपका मटेरियल खत्म हो जा रहा है तब भी, then one book which generally you know some of the CAT veterans talk about is मैनहट्टन का आरसी का बुक। ये जो हमारा गूगल ड्राइव लिंक है, स्टडी गूगल ड्राइव लिंक जो आप लोग के टेलीग्राम ग्रुप्स में है, तो उसमें आप बीए आरसी के फोल्डर में जाएंगे तो आपको मैनहट्टन का आरसी का बुक दिखेगा। इसका बहुत तारीफ करते हैं लोग, स्पेशली हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जैसे ऋषभ श्रीवास्तव। He took CAT examination, he got 100 percentile in quant, but he got poor in BARC. And then he said that books, you know, related to GMAT, because over the past years, पूरी तरह से ये नहीं हुआ है, लेकिन जो CAT का RC है, वो थोड़ा GMAT की तरफ जा रहा है। आप GMAT के RC को देखोगे, तो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं। एक एक पैराग्राफ में उसमें आप रीजनिंग और इस तरह के लॉजिक को टेस्ट कर सकते हो और उसे क्वेश्चंस बना सकते हो। पहले क्या होता था, कैट के जो आरसीएस होते थे उसमें उतना क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग का एप्लीकेशन नहीं होता था। या तो फिर आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढो, और या फिर जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है, अंडरस्टैंडिंग है वो पूरे पैसेज का या फिर पैराग्राफ का, उसके बेस पे आप क्वेश्चन करो। लेकिन ऑफ लेट
CAT RCs are getting more structured. GMAT के भी RCs बहुत structured होते हैं, तो मैनहट्टन का आप RC करेंगे तो इससे आपको फायदा मिलेगा, बट पहले आपको CAT का जो हमारा मटेरियल है, बिकॉज जो हमारा मटेरियल है वो तो CAT के तरह है, जो मैनहट्टन या फिर GMAT का ऑफिशियल वर्बल रीजनिंग गाइड भी वो तो GMAT के तरह है। तो पहले तो आप CAT का मटेरियल करोगे, because in difficulty level in terms of pattern it will be closest to CAT, but this GMAT RC, practicing GMAT RC whether from the official guide of GMAT or official verbal reasoning guide of GMAT or Manhattan RC, this has helped good number of students in boosting their RC score. Critical reasoning, critical reasoning में तीन तरह के क्रिटिकल रीजनिंग होते हैं। पहला क्रिटिकल रीजनिंग होता है जो हम ओमेट क्रिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं, जो स्नैप और जैट और एनमैट में आता है कभी कभी, जिसमें हम कोर्स ऑफ एक्शन और फैक्ट इन्फ्लुएंस जजमेंट और रीजन असर्शन इस तरह का हम बात करते हैं। ये कैट में नहीं आने वाला है, मतलब नहीं आ रहा है, उसका चांस बहुत कम है। आरसी के अंदर ही जो पैराग्राफ में लॉजिक दिया है आर्गुमेंट का, उसको रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जो जीमैट के आरसी में आता है। तो जीमैट में भी इस तरह का ओमेट नॉन कैट क्रिटिकल रीजनिंग नहीं आता है। जो जीमैट में भी हम क्रिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं, इट इज बेसिकली चेकिंग द लॉजिक व्हिच इज बीइंग यूज्ड इन द आर्गुमेंट ऑफ द पैसेज और द पैराग्राफ। तो स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग आर्गुमेंट्स के क्वेश्चंस करने से काफी हेल्प मिलता है इसको समझने में। Of course, we have handouts and we will be doing classes, or we would have done some classes on strengthening and weakening arguments. Last 10 years का जो कैट का पेपर है, तो क्या ये कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी नहीं है। Last 10 years के पेपर को करने से you feel confident because you know okay these are the papers which have come over the past 10 years, so after doing them your confidence is naturally going to be a bit higher. बट इट्स नॉट कंपल्सरी दैट वो कुछ सवाल आने वाला है या फिर वो रिपीट होने वाला है या एग्जैक्ट सेम मॉडल आने वाला है। सो इफ यू हैव टाइम देन यू प्लीज लुक एट द लास्ट 10 years papers, but it's not compulsory and it's not paramount, like it's not your priority right now. First priority is जो आपका lot 1 है, lot 2 है, सेक्शनल टेस्ट है, SAMCATs है, MCATs है, आप उनको खत्म करो। वो खत्म होता है तो उसके बाद ये लास्ट 10 years का कैट पेपर, मैनहट्टन का आरसी, ये सब पे आप नजर डाल सकते हो। टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है कि मुझे थोड़ा लगा एग्जैजरेटेड भी हो, बट कुछ कैट वेटरन्स जिनसे मैंने बात किया जो 15 साल से कैट में नंबर 1 पोजीशन पे है, उनका ये कहना था कि अगर आप 3 घंटे का पेपर लिखते हो, पहले 3 घंटे का पेपर हो रहा था, तो कम से कम 6 घंटे 5 से 6 घंटे की एनालिसिस होनी चाहिए। एक ने बोला 1:3 का रेशियो दिया, मतलब एनालिसिस पे इतना फोकस कर रहे हैं वो कि आप टेस्ट लिखते हो, आप अच्छे से एनालाइज करो, उसमें से देखो क्या गलतियां हैं, कोई इजी क्वेश्चन तो नहीं छूट गया। तो एक कैट वेटरन ये बोल रहे थे कि मैं कभी-कभी फुल स्कोर भी अगर लाता था कोई सेक्शन में या नियर फुल स्कोर, तो लेकिन मैं खुश नहीं होता था अगर मैं ये देखता था कि जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस है या डिफिकल्ट वाले सेट्स है उनको मैंने पहले किया है और आसान क्वेश्चंस को बाद में किया है, बिकॉज ये सही टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होगा कि आप फुल लेंथ टेस्ट लोगे और कुछ टॉपिक्स देखोगे कि कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आपकी गलतियां बहुत दिखाई देती हैं आपको, अपनी गलतियां, तो फिर यू नीड टू टेक अ डे ऑफ और 2 day ऑफ टू रिवाइज, टू गेट बैक। सो पैनिक नहीं करो, मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको हर दिन मॉक लिखना है, ये कंपलसरी नहीं है। हाँ, ये कंपलसरी है कि आप कम मॉक भी लिख रहे हो, आप 2 दिन में भी एक मॉक लिख रहे हो, 3 दिन में भी एक मॉक लिख रहे हो। ये उन बच्चों के लिए जो अपना बेसिक प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं और अब फुल लेंथ टेस्टिंग के साथ एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगर आप 3 दिन में भी एक मॉक लिख रहे हो तो वो चलेगा, बट ये नहीं चलेगा कि हर दिन मॉक लिख रहा है लेकिन एनालिसिस नहीं है, इंप्रूवमेंट नहीं है, सेम गलतियां हो रही हैं, स्कोर ऊपर नहीं जा रहा है। So please understand, analysis of the mock is very important. Zero silly mistakes, 20 मिनट्स का लेके पेपर करना, ब्लॉक्स बनाना क्वांट में, आरसी पहले करना, वीए कोशिश करना टाइम आउट देखने का कि बहुत भी टाइम नहीं लगे लास्ट में भी, ये तो
छूट सकता है. तो these things you have to watch very 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 carefully. It is very very important because now you need more speed, more accuracy. मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा कि जो टॉपर्स होते हैं उनकी मेंटालिटी होती है सब कर दो, सब चाहिए. तो आप देखोगे बिजनेस वर्ल्ड में भी, आप एमबीए करोगे, इंडस्ट्री में काम करोगे, कॉर्पोरेट में आओगे या खुद का भी बिजनेस करोगे, आप देखोगे जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो सब मतलब चाहते हैं सारा मार्केट उनके जेब में आ जाए. शार्प मेंटालिटी इसको कहते हैं. तो समय कम हुआ, क्वेश्चंस कम हुआ मुझे लगता है, लेकिन तब भी बहुत अटेम्प्ट्स, यानी कि ज्यादा अटेम्प्ट्स करेंगे तभी लोग. कहने का क्या मतलब है कि पहले जब आपके 100 सवाल थे तो अगर मानिए x नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने से 99 परसेंटाइल बनता था और वो x जो है x% में लेके चले कि x% ऑफ द पेपर अगर आप करेंगे तो 99 परसेंटाइल आएगा, तो अब वो x% नहीं, x% से थोड़ा ज्यादा होगा. That means that if someone does in a section earlier 50% and he gets a 99 percentile, now to get the same 99 percentile he'll have to do more than 50% correct of that particular section. That's the reason I'm going on telling you speed has to, it's like necessity is the mother of invention. When you are, pressed against the wall, you tend to give your best, because then you stop thinking other things, na? You're just thinking about that thing. In this paper, you will have to consciously improve your speed and accuracy. Otherwise, आपको लगेगा अरे नहीं यार, प्रोपोर्शनटली मैंने कम अटेम्प्ट्स किए, टाइम कम हुआ तो प्रोपोर्शनली क्वेश्चंस भी कम हुए, मेरे प्रोपोर्शनटली अटेम्प्ट्स भी कम हुआ, लेकिन परसेंटाइल में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. इट वोंट रिफ्लेक्ट इन द परसेंटाइल. मार्क माय वर्ड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि कितने मॉक्स करें पेपर के पहले. वो पूरा आप पे डिपेंड करता है है कहां. अभी सबको अलग अलग लेवल पे होगा. तो कुछ बच्चे हर दिन मॉक लिख सकते हैं, कुछ बच्चों का बेसिक प्रिपरेशन नहीं कंप्लीट हुआ है तो अभी 15-20 दिन 25 दिन मॉक ना ही लिखे तो अच्छी बात है. कुछ लोग हैं कि जब तक उनका प्रॉपर सिलेबस खत्म होगा, लॉट 1 खत्म होगा, लॉट 2 खत्म होगा, सेक्शनल टेस्ट खत्म होगा, 30 दिन बचे होंगे, तो 30 दिन में 20 मॉक लिख लें, 30 दिन में 30 मॉक भी लिख सकते हैं, 30 दिन में 15 मॉक भी लिख सकते हैं. गिवन आप एनालिसिस करके इंप्रूवमेंट कर पा रहे हो तो लास्ट के 30 दिन में 15 मॉक लिखने वाला भी 100 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल ला सकता है, और 30 मॉक लिखने वाला भी ला सकता है, और दोनों भी नहीं ला सकते. सो द नंबर ऑफ मॉक्स दैट अ स्टूडेंट विल टेक विल डिपेंड ऑन हिम और हर. प्लस क्या कौन से ज्यादा मॉक है, तो ज्यादा एमकैट ले. अगर आपको 15 ही मॉक लिखना है तो आप 15 एमकैट पढ़ लो. एमकैट सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर सैमकैट है, फिर एडवांस सेक्शनल टेस्ट है, फिर एडवांस मटेरियल है. So you should go in that order if you have less time for preparation. फिर मुझे पता है कि आप लोग को मैं जितना भी बोलूं कि भाई कोई फिक्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लेके चलना सही नहीं होता है, बिकॉज आपको नहीं पता ना कैसा पेपर. अभी हम लोग सोच के चलते हैं DILR बहुत मुश्किल आता है तो इसमें हम कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके भी 99 परसेंटाइल पार कर देंगे, ये आप सोचते हो. व्हाट इफ DILR आसान हो गया, आप ये सोच के चलोगे तो आपके अटेम्प्ट्स कम रह जाएंगे. फिर आप सोच के चलते हो कि इंग्लिश में अच्छे खासे अटेम्प्ट्स करेंगे, ये बहुत कॉमन स्ट्रैटेजी है, ये वर्क भी करती है. मैं आपको ऋषभ श्रीवास्तव के बारे में बताऊंगा, बिकॉज उसको भी मैंने बोला है सेशन लेने के लिए मेरे बाद, बिकॉज ही क्वालिफाइज टू टेक योर सेशन लाइक मी. He has got 100 percentile, overall he's got 99.93 percentile. He's studying in IIM Calcutta. He's a very decent gentleman also. He's a nice boy. He has a nice heart. He helps students and all. So I was asking his score का division. तो वो बोला सर मेरा मैथ्स अच्छा था तो मुझे पता था कि 100 परसेंटाइल 99.99 परसेंटाइल ये DILR और मैथ्स में तो मुझे आ जाएगा. इंग्लिश में मैंने क्या स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की कि इंग्लिश मेरी अच्छी है नहीं क्योंकि वो ट्रिपल गोरखपुर का है और आई थिंक कहा गोंडा का है वो. सो उसका इंग्लिश होता है अच्छा नहीं है वो बोला. तो उसने क्या बोला कि मैं अटेम्प्ट्स हाई रखूंगा, मुझे पता है मेरी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं रहेगी. 32 अटेम्प्ट किया, 34 सवाल आए थे पिछले साल कैट 19 में, 32 अटेम्प्ट किया, 19 सही किया. सिर्फ 32 अटेम्प्ट 19 सही, तो एक्यूरेसी तो खराब है, तभी 97 परसेंटाइल पार हो गया. सो he was saying that this strategy works. मैं भी यही करता था, मुझे पता है जैसे इंग्लिश है एक्यूरेसी उतनी हाई नहीं होगी, पता चला कि 10 कम अटेम्प्ट भी किया, एक्यूरेसी भी कम रहा और पूरा स्कोर ही अंदर नीचे चला गया. You have to टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू वर्क, और सबका टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी अलग रहेगा बिकॉज सबके स्ट्रेंथ वीकनेसेस अलग रहेंगे.
बट अगर हम ये सोच के चलते हैं कि 22 आने वाला है इस साल के कैट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्ट में 99 प्लस परसेंटाइल लाने के लिए 17 to 20 अटेम्प्ट्स होने चाहिए आपके अच्छी एक्यूरेसी के साथ, और अगर 96-97 परसेंटाइल लाना चाह रहे हैं कॉन्ट में तो 15 to 17 आपके होने चाहिए। VARC में अगर 24 सवाल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कॉन्ट की तरफ, सेम 17 to 20 आपको करना होगा 99 के ऊपर लाने के लिए, 15 to 17 करना होगा आपको 96-97 रेंज में आने के लिए। DILR अगर वैसे ही पेपर आएगा डिफिकल्टी में जैसा आता रहा है, 11 से 12 आप करेंगे बहुत हाई एक्यूरेसी से, आपका 99 परसेंटाइल पार हो सकता है। 8-9 सही कर देंगे या 8-9 अटेम्प्ट्स में 7-8 भी सही करेंगे तो 96-97 परसेंटाइल पार हो जाएगा। This I have arrived at after discussing with those people who have got these kind of percentiles in these kind of scores. Any doubt so far? Any doubt so far? IMS is a very bad coaching institute. IMS के बारे में क्यों बात कर रहे हो? अपने बारे में बात करो, टाइम के बारे में भी अपने बारे में बात करो। अभी बोला 60 days, no nonsense, just focus on your preparation. अगर आप ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी हो तो आप 96-97 परसेंटाइल तो ला सकते हो। ऑर्डिनरी स्टूडेंट का क्या मतलब है? अभी जागा है, मतलब अभी उसको लगा है। क्यों? क्योंकि मेरे कल कितने स्टूडेंट्स आए, कल आए, परसों आए, LU का एग्जाम उनका हुआ तो वो LU का एग्जाम दे के आए। आज सुबह मेरा एक कलीग बोल रहा था मुझे कि नेशनल में भी एग्जाम चल रहे हैं। तो बहुत लोग मतलब अभी शुरू कर रहे हैं। आप अभी शुरू कर रहे हो तो जैसा मैंने मैथ्स में डिस्कस किया, कुछ चीजें आप छोड़ सकते हो अगर आप उतने अच्छे नहीं हो, टाइम नहीं है। बट अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी लेके चलोगे तो 96-97 तो आएगा ही आएगा। और अगर 99 प्लस और 100% के लिए आप कोशिश कर रहे हो देन यू हैव टू स्टडी ऑल, बिकॉज़ सबसे थोड़ा थोड़ा आ रहा है, सबसे थोड़ा थोड़ा आ रहा है। छोड़ोगे क्या? Rishabh is also there with us. Is he there with us? Yes, he is. Okay, 5 minutes I'm going to take to talk about NMAT, ZAT and SNAP. सबसे पहले तो ZAT का एग्जामिनेशन जनवरी में, तो उसको भूल जाओ, अभी कैट पे फोकस करो, फॉर्म भर दो। एक बैड न्यूज ये है कि SPJM पहले ZAT कैट दोनों लेता था, बट अब सिर्फ कैट का स्कोर लेगा, तो वो भी गया। अब ZAT में क्या है? एक्सेलराय तो है, एक्सेलराय के 2 प्रोग्राम आपको फिल करने हैं, BM एंड HR। BM इज द बिजनेस मैनेजमेंट, HR इज द ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम। फिर वो GMP भी एक प्रोग्राम है, वो पार्ट टाइम है, आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ एक्सेलराय में BM, HR, अगर आपको HR में इंटरेस्ट है तो ये फिल करना है। इसके अलावा ZAT के अंदर IMT गाजियाबाद है और XU भी है, जेवियर यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर। फिर उसके नीचे और ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूट्स है, टैपमी है, ग्रेट लेक्स है, बहुत सारे हैं। नीचे के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो सबका ही स्कोर लेते हैं, कैट भी चलेगा, सीमेट भी चलेगा, ZAT भी चलेगा, GMAT भी चलेगा, सब चलेगा। ऊपर के इंस्टीट्यूट्स है वो पिकी रहते हैं। हम लोग एक एक्सक्लूसिव, अभी तो फॉर्म्स नहीं निकले, अभी एग्जाम्स के फॉर्म निकले हैं, इंस्टीट्यूट्स के फॉर्म नहीं निकले हैं, उसका हम एक अलग सेशन लेंगे जिसमें हम पूरा पेपर, लाइक I cannot share the breakup of questions over the past 4 years of CAT openly, but if you come to the coaching, then I can share it with you. But the B School selection guidance, I will be sharing the entire Excel sheet जहां आप देख सकते हो कौन सा B School है, क्या प्लेसमेंट है, क्या फीस है, क्या कट ऑफ है, क्या ऑर्डर है, क्या नंबर ऑफ सीट्स है, उसका भी सेशन करेंगे और सारा डेटा से आपके साथ शेयर करेंगे। तो पैनिक मत करो, मतलब मुझे पता है क्या डेट्स हैं फॉर्म्स के, यू वोंट मिस एनी फॉर्म। आप अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स में हो तो आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगा और सेशन भी मैं दूंगा। ZAT का नहीं भरना है आपको। ZAT में कुछ चेंजेस आए हैं। पहला चेंज आया है जो कि बहुत ही मामूली चेंज है, 10 से 1 एग्जाम होता था, 9:30 से 12:30 होगा, तो चलो सुबह उठो और थोड़ा जल्दी। दूसरा ये कि 99 क्वेश्चन पहले आते थे, अब 100 आएंगे, तो वो भी बड़ा चेंज नहीं है। फिर एक मेजर चेंज है, टीटा क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हुए हैं मैथ्स में, इसको लोग NAT कह रहे हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट या कुछ ऐसा। कुछ नहीं है, आपको बेसिकली टाइप इन करना है, इनका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, अदरवाइज जो क्वेश्चन है उनका -1/4 होता है। कैट और ZAT में एक ही मेजर फर्क है कि ZAT में एक डिसीजन मेकिंग का सेक्शन आता है, तो जब कैट का एग्जाम खत्म होगा 29 तारीख को,
हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से ही डिसीजन मेकिंग क्लासेस शुरू कर देंगे। तो अभी प्लीज ज़ैट को किनारे रखो। फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है 30 नवंबर, तो फॉर्म भर देना, लेकिन और कुछ इसके लिए अभी करने को है नहीं। सिमिलरली हम स्नैप की बात करेंगे, तो स्नैप का एक बहुत मेजर चेंज क्या हुआ, पहले स्नैप सिर्फ एक बार होता था, अब क्या है 3 डेट्स दिए हैं हम लोग, बट 3 डेट्स में आप 2 डेट्स ही चूज कर सकते हो। उसमें भी अगर आप डेट देखोगे तो डेट है 20 दिसंबर, 6 जनवरी, 9 जनवरी। तो एक तरह से देखोगे सबको ही 20 दिसंबर सेलेक्ट करेगा, और सेकेंड अटेम्प्ट जो है या 6 या 9 को लेगा अगर लेना चाहता है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, आपको फॉर्म फिलिंग के समय ही ये डिसाइड करना है कि आप 2 बार लेंगे कि 1 बार लेंगे। बाद में आप ये डिसीजन नहीं चेंज कर सकते कि मुझे और एक अटेम्प्ट लेना है। पेपर छोटा कर दिया है, 60 मिनट का, सिर्फ 1 घंटे का पेपर है, 1 घंटा 60 सवाल। कैट का अगर आपने पढ़ाई कर लिया है तो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि 20 दिसंबर को पेपर है। जो थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पढ़ना होगा बीए में और रीजनिंग में, वो हम लोग पढ़ाएंगे जैसे कैट एग्जामिनेशन खत्म होगा। सो प्लीज डोंट थिंक अबाउट स्नैप राइट नाउ, डोंट थिंक अबाउट ज़ैट राइट नाउ। यू विल गेट इनफ टाइम आफ्टर द कैट एग्जामिनेशन टू फोकस ऑन स्नैप एज वेल एज ज़ैट। स्नैप में SIBM पुणे नंबर 1 है उनके कॉलेजेस में, उसके बाद सेकंड SCMHRD पुणे है, थर्ड नंबर पे SIIB सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस बैंगलोर है, पुणे है। तो फर्स्ट इज SIBM पुणे, सेकंड इज SCMHRD पुणे, ये दो तो ऊपर आ जाते हैं। फिर नीचे आता है इनके जस्ट SIIB पुणे एंड SIBM बैंगलोर। फिर इनके नीचे आता है 5 इंस्टीट्यूट्स, SIOM सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जो बच्चे ऑपरेशंस मैनेजमेंट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, SCIT सिम्बायोसिस सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो IT में इंटरेस्ट रखते हैं, और SIMS ये उन बच्चों के लिए जिनके फादर या मदर मिलिट्री बैकग्राउंड, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में किसी में से बिलोंग करते हैं, SIMS, और SIBM हैदराबाद। बट ऑनेस्टली आस्किंग, इफ यू आस्क मी, इकोनॉमी की ऐसी हालत खराब है, तो इस केस में ये जो तीसरे लेवल के इंस्टीट्यूट्स सिम्बायोसिस के हैं, SIOM, SIMS, SCIT और एक SITM भी है, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम मैनेजमेंट, इन सबका जो एवरेज पैकेज है वो 9 लाख के प्लस है। लेकिन अब नहीं पता कितना होगा, तो रिस्क लेने लायक नहीं है। अगर आप रिस्क लेना भी चाहते हो तो आप SIIB पुणे, SIBM बैंगलोर में लो, और अगर आपका SIBM पुणे और SCMHRD पुणे हो जाता है तब तो वेरी गुड। मैं मेल भी भेज दूंगा ये जो बोल रहा हूँ, लेकिन एग्जाम बहुत दूर है, प्लीज पैनिक मत करो। कुछ बच्चे अभी से फॉर्म भरने में एकदम उत्साहित हैं, किस लिए आपको इतना उत्साह है फॉर्म भरने से? तो ऐसा थोड़ी है कि जल्दी फॉर्म भरने से कुछ मिल जाएगा आपको। कैट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। एनमैट में भी आपको कितना अब आराम है, पहले एनमैट अक्टूबर से ही शुरू हो जाता था, तो यानी कि आपको कैट के पहले ही एनमैट का हेडेक लेना पड़ता था। अच्छा, कैट और एनमैट हो या स्नैप हो या ज़ैट हो या आपका सीमैट हो, में मेजर फर्क क्या है? एक सेंटेंस करेक्शन का। कैट में ग्रामर का नहीं आता है, लेकिन बाकी सब में आपको सेंटेंस करेक्शन का आता है। तो एक प्रेशर आपको ये लेना पड़ सकता था कि कैट के पहले ही ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, ये नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब एकदम बहुत धड़ाके से पढ़े। लेकिन अब चेंज क्या है कि एनमैट का जो टेस्ट विंडो है वो है नवंबर 4 से जनवरी 30। नवंबर भर एग्जाम, दिसंबर भर एग्जाम, जनवरी भर एग्जाम। जब इतना लंबा है विंडो पीरियड, तो आप भाई दिसंबर में एक ले लेना और जनवरी में एक ले लेना। टेक वन अटेम्प्ट मे बी मिड दिसंबर and take one attempt mid Jan. Why you want to take an NMAT attempt before CAT examination? आप CAT का एग्जाम के पहले क्यों लोगे NMAT? So one thing you have to be very very clear. CAT के अंदर में जितने इंस्टीट्यूट्स आते हैं उतना ये ना NMAT में है, ना स्नैप में है, ना ज़ैट में। CAT अगर आपका अच्छा जाता है, आपका साल बच गया, आपको मनपसंद का कॉलेज, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। CAT खराब जाता है तो एनीवेज आपका 60-70% गेम फ्लॉप हो चुका है। स्नैप दो ही अच्छे इंस्टीट्यूट, SIBM पुणे, SCMHRD का, SIBM पुणे, SCMHRD पुणे। चलिए एवरेज की हम बात करें तो SIIB पुणे और SIBM बैंगलोर को भी लें। प्लस चलिए अगर आपको 7-8 लाख का भी एवरेज पैकेज चलेगा तो ये छोटे इंस्टीट्यूट्स भी, बट अब नहीं। The market right now is not very placement driven. So if you are taking risk with slightly average B schools, now you should not be taking risk with those average B schools.
एनमैट की बात करें, अब एनमैट में नार्सी मोंजी ही 5 है। नार्सी मोंजी मुंबई जो कि ऑफ कोर्स 17-18 लाख पैकेज है, नंबर 1 पे है। फिर नार्सी मोंजी बैंगलोर, फिर नार्सी मोंजी हैदराबाद, फिर नार्सी मोंजी नवी मुंबई, फिर नार्सी मोंजी इंदौर, जिसमें नार्सी मोंजी इंदौर वालों ने अपने प्लेसमेंट्स की ही जिक्र नहीं की। अच्छा, पहले बहुत दिक्कत होती थी स्टूडेंट्स को, बिकॉज उन्हें नार्सी मोंजी में नार्सी मोंजी का मुंबई के लिए अलग से अप्लाई करो, नार्सी मोंजी का जो बैंगलोर हैदराबाद कैंपस है उसके लिए अलग से अप्लाई करो, या दोनों को आप साथ में अप्लाई करो, तीनों को तो अलग से उसका फीस दो। अब उसमें इंदौर भी आप अलग अप्लाई करो, नवी मुंबई भी अलग अप्लाई करो। तो कोरोना को देखते हुए थोड़ा ये उतना ग्रीड अपना कम किया है नार्सी मुंजी वालों ने, ऐसे दे आर नोन टू बी लाइक वेरी वेरी ग्रीडी, दे चार्ज फॉर एवरीथिंग। बट दिस ईयर थैंकफुली एक फॉर्म भरा रहे हैं, वो एक फॉर्म ही से आप सारे फॉर्म, मतलब आप जो आपसे फीस ले रहे हैं फॉर्म फीस, उसमें मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, नवी मुंबई, इंदौर सब आप भर सकते हो। दूसरा, पिछले साल तक क्या था, 3 बार आप अटेम्प्ट दे सकते हो एनमैट का, तो हर बार आप एनमैट का अटेम्प्ट लोगे तो हर बार आपको नार्सी मुंजी का अलग से, जहां भी मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद अप्लाई करो, फिर से फॉर्म खरीदना होगा, फिर से फॉर्म भरना होगा। इस बार ऐसा नहीं है, एक बार आप नार्सी मुंजी, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद वगैरह का फॉर्म भर देते हो, फिर बार बार आप कैट एनमैट लेते भी हो तो आपको वो फॉर्म अलग से नहीं भरना है। एनमैट का फॉर्म आपको फिर से भरना होगा, लेकिन इंस्टीट्यूट के एमबीए प्रोग्राम का अलग से नहीं भरना होगा। अच्छा, एनमैट का स्कोर कौन लेता है? दिए, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे एनमैट का, इफ यू कैन शेयर द स्क्रीन सार्थक, एंड यू कैन गो टू द एनमैट का वेबसाइट, तो आपको बहुत तरह के इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, बट 95% जो इंस्टीट्यूट्स है ये एनमैट के अंदर में ये प्योर गार्बेज है, मतलब इट्स वर्स देन गार्बेज। इनका आपको नाम पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा ये गार्बेज है पूरी तरह से। लेकिन जो अच्छे हैं, जहां आप अप्लाई करने का सोच सकते हो, तो उसकी हम पहले बात करेंगे। सो नार्सी मुंजी आप सबको दिख रहा है, ये you can see the website of NMAT. Yes, okay. So now if you look at the first NMIMS, उसमें आपको मैंने बोला NMIMS मुंबई, तो IIMs, XLRI, FMS, ये एक लेवल हो गया, 6 IIM, FMS, XLRI। फिर सेकंड लेवल पे आ गया आपका SP जैन, जमनालाल बजाज, MDI, IIFT, IIT बॉम्बे, ये सब आ गया आपका, IIM शिलोंग, ये सब सेकंड लेवल पे आ गया। फिर थर्ड लेवल पे आपका ये नार्सी मुंजी मुंबई हो गया, SIBM पुणे हो गया, कुछ न्यू आईएम जैसे आईएम रांची वगैरह हो गया, ये सब आते हैं। तो नार्सी मुंजी मुंबई ठीक है। फिर जब आप बात करते हैं नार्सी मुंजी बैंगलोर हैदराबाद का, तो उनका एवरेज पैकेज 10 के आसपास आ जाता है, 10 का पैकेज आ जाता है, यानी कि वो मीडियोकर लेवल पे आ गया। 10 का पैकेज, बॉकनी का भी 10 का पैकेज है, ग्रेटलिक्स का भी 10 का पैकेज है। ये जो आप लोग को मैंने बात किया SIOM, SCIT, SIMS, SIBM हैदराबाद, इनका भी 9 to 10 का पैकेज है, तो फिर ये उतना अट्रैक्टिव नहीं होता है। नीचे आप जाओगे तो नवी मुंबई और नार्सी मुंजी हैदराबाद वही 9 के पैकेज के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट ये प्री कोरोना टाइम की हम बात कर रहे हैं। और नार्सी मुंजी इंदौर का अच्छा नहीं, इट इज नॉट गुड एट ऑल। फिर ISB में सिर्फ बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम, वो भी पार्ट टाइम बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम है, यानी कि ISB इससे नहीं होगा। ISB इज इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद, बहुत मुश्किल है। थर्ड, SP जैन का जो प्रोग्राम आप अप्लाई कर सकते हो एनमैट के थ्रू, वो वर्किंग वुमन के लिए, वो आप लोग के लिए नहीं है, प्रॉपर MBA नहीं है। नीचे SDA बॉकनी, एक्चुअली MISB बॉकनी एक अच्छा MBA इंस्टीट्यूट है मिलान, इटली में, उसका ये इंडिया का एक्सटेंशन सेंटर है। पैकेज इज अराउंड 10 लाख, बट फीस बहुत है, और आपको मिलान भेजते हैं तो वो सेमेस्टर का फीस बहुत हाई हो जाता है। तो अगर आप वेल टू डू हो तो आप देख सकते हो बॉकनी। फिर XUB जेवियर यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, जो जेवियर यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर का मेन MBA प्रोग्राम है, उसमें नहीं होगा आपका इसके थ्रू, उसके लिए आपको कैट लिखना होगा, जेट लिखना होगा। यार एनमैट के थ्रू XUB का HR प्रोग्राम, जिसका 12 लाख के आसपास पैकेज होगा प्री कोरोना में, पोस्ट कोरोना में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता प्लेसमेंट्स में। तो XUB का आप HR अप्लाई कर रहे हो तो एनमैट के थ्रू कर सकते हो। IBS ICFI हैदराबाद, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो ICFI हैदराबाद में एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर आप देखेंगे तो एडवांटेज ये है कि पुराना बी स्कूल है और काफी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है, बड़ी टीम है इनकी। तो अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, बैच में टॉप 50% में भी हो, तो आपका ठीक प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन बैच साइज ही कुछ 1000 के ऊपर है, आप बॉटम बैच में हो तो दिक्कत होगा। सो इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट, you can look at ICFI Hyderabad.
नेक्स्ट इज आईएफएमआर चेन्नई, सेम काइंड है, 9 लाख के आसपास का एवरेज इनका पैकेज रहेगा. बट the good institutes, the top placements will become slightly above average placements, the above average placements will become average placements, the average placements will become below average placements. प्लीज इस पे ध्यान देना, क्योंकि कोरोना का टाइम है, तो तुम्हें जैसे एग्जाम का टाइम कम हो गया कैट का, जल्दी भागना होगा, स्पीड में एक्यूरेसी भी बढ़ानी होगी. सेम इज द केस विद इंस्टीट्यूट्स. इसमें वापस जाओ. इसके अलावा नार्सी मोहन जी के थ्रू जो इंस्टीट्यूट्स दिए हुए हैं वो मैंने भी कभी लाइफ में नहीं पढ़े हैं. मास्टर यूनियन, पढ़ने दो एक बार मुझे. मास्टर यूनियन एथेंस तो ग्रीस में है, और चितकारा यूनिवर्सिटी, चिंकारा सुना था मैंने, और IILM, मायरा, और SPM, CMS तो यहाँ स्कूल है, CMS बिजनेस स्कूल भी है, जैन यूनिवर्सिटी है. Maybe you have to be a vegetarian to be a part of this college. Alliance, Soil, मिट्टी, और शिव नादर, बेनेट, ये बॉक्सन, LMTSM, यूनिवर्सल, ISBR. मतलब इसमें एक भी स्कूल में अगर तुम गए तो एक चीज श्योर है कि तुम्हारा कटने वाला है पूरी तरह से. तो प्लीज भूल जाओ, देखो ही मत, नीचे पूरा मामला ही साफ है, पूरा मामला साफ है. मामला गड़बड़ है एक आता था जसपाल भट्टी का जब मैं छोटा था, वैसा टाइप का है. नार्सी मोहन में मुंबई नार्सी मोहन बहुत ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो. फिर अगर है तो चलो बैंगलोर हैदराबाद है, और फिर बॉकनी है, IFMR है, और इक्फा हैदराबाद है. ये ऑर्डर है. इसके बियॉन्ड और XUB-HR है. तो जस्ट नार्सी मोहन मुंबई के बाद XUB-HR आएगा अगर आप HR में इंटरेस्टेड हो. बट हो गया, ये हटा सकते हो. बट बच्चों सेक्टोरल MBA, स्पेशलाइजेशन पहले ही से दिया हुआ MBA, ये नहीं करना चाहिए. ये अच्छा नहीं होता. आपके करियर अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होते हैं. अगर आप जाते हैं और मानिए आप SITM ज्वाइन करते हैं, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेलीकॉम मैनेजमेंट, तो आप लाइफ टाइम टेलीकॉम मैनेजमेंट में ही रह जाएंगे. टेलीकॉम इंडस्ट्री खराब जा रही होगी तो आपका भी करियर खराब जा रहा होगा. डोंट डू द मिस्टेक ऑफ स्पेशलाइजिंग इन इंडस्ट्री. MBA, the general MBA is the best MBA because it is industry agnostic. If you don't like one industry, you can always switch to another industry. Plus, it shouldn't be too specialization based. कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं पहले ही से आपको चुनना है कि मार्केटिंग में MBA करेंगे, फाइनेंस में MBA करेंगे, ऐसा चुनना है. ये गलत है. कोई भी सीनियर लीडरशिप पोजीशन के लिए, CEO पोजीशन के लिए, बिजनेस लीडरशिप पोजीशन के लिए आपको सारे फंक्शंस आने चाहिए. 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, सिस्टम्स, HR. इसमें 2-3 तो बहुत अच्छे से आने चाहिए कम से कम. सो ये सेक्टोरल MBA, स्पेशलाइज्ड MBA, डोंट गो फॉर इट. रूरल मैनेजमेंट, सर्विस मैनेजमेंट, नॉट अ गुड आइडिया. These kind of MBA, go for the regular, जो उनका नॉर्मल 2 साल का रेगुलर MBA, फ्लैगशिप MBA प्रोग्राम है. प्लीज गो फॉर दैट ओनली. जल्दी से देख लेते हैं कि अच्छा, इस बार एनमैट का जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको उसी समय बोलना होगा कि आप घर से दोगे या फिर सेंटर पे दोगे. दोनों ऑप्शन है, घर पे भी दे सकते हो और सेंटर पे भी दे सकते हो. घर पे देना है तो आप चेक कर सकते हो, लिंक दिया हुआ है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसका. बट अगर एग्जाम के दिन आपके घर में कुछ लोचा है, यानी कि आप नहीं एग्जाम लिख पाए हो, सॉफ्टवेयर का लोचा हो, हार्डवेयर का लोचा हो, या कुछ भी हो, यू विल फोरफीट योर फीस. मतलब आपका पैसा बर्बाद होगा, वापस नहीं करेंगे, आपका ऑफकोर्स अटेम्प्ट तो गया ही वो. सो बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट. इसके अलावा जो एक्स्ट्रा रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना पड़ता है ओमेट्स का, वो तो आप पढ़ ही रहे हो. जो आपके टाइम के सेकंड रीजनिंग बुकलेट में भी ये कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज और पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, ब्लड रिलेशंस और ऑड वन आउट और पता नहीं है. तो थोड़ा बहुत ये आ सकता है एनमैट में, स्नैप में, जैट में. I'm just seeing if there is anything else. एनमैट में the questions have been reduced. 2 घंटे का पेपर 108 मार्क्स. एनमैट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है. तो जब आप सेक्शन करते हो तो लास्ट के 1-2 मिनट में जो क्वेश्चंस आप छोड़ दिए हो उसको आप ABCD करके मार्क करोगे, तो इस तरह से आपका रिस्क डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. आपको कम से कम कुछ तो स्कोर मिलेगा. ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. जीके का पूरा सफाया हो गया, स्नैप से भी जीके का सफाया हो गया. एनमैट में तो जीके आता ही नहीं, कैट में भी जीके नहीं आता है. अच्छा, जैट में जीके का एडिशनल सेक्शन आता है जिसका कोई स्कोर नहीं होता है.
तो जैट में जैसे आप बात करें तो प्रॉपर 3 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश का, मैथ्स और डीआई साथ में आता है, और डिसीजन मेकिंग का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3। जीके का अलग से आता है, वो नॉन स्कोरिंग होता है। तो इन अ वे आप अपना बहुत टाइम ना जीके पढ़ने में मत बर्बाद करो। आई नो जीके आईएफटी में आता है, बट एक आईआईएफटी कोलकाता और आईआईटी दिल्ली के चक्कर में आप घंटों घंटों अभी से जीके में देने लगोगे। कैट में जीके है ना, एनमेट में है ना, स्नैप में है, जैट में भी उसका कोई स्कोर नहीं आता, तो किस लिए इतना मेहनत कर रहे हो जीके में? डोंट डू दिस स्टूपिडिटी। नेक्स्ट 60 डेज में इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज आईएफटी का अलग से आपको जीके का मिलेगा, मटेरियल मिलेगा। अभी भी आप जाएंगे, वो जो गूगल स्टडी ड्राइव का लिंक है उसमें आप जाओगे तो आपको ये जीके, टिस जीके, आईएफटी जीके, ये सब मिल जाएगा। स्नैप में भी वही इंग्लिश है, रीजनिंग है और क्वांट डीआई का सेक्शन है। तो अच्छी बात यह है कि मैं तो अपने स्टूडेंट्स को स्ट्रांगली डिस्करेज करूंगा कि ये एनमैट, स्नैप, जैट वो कैट के पहले रहे। उनका फोकस, ऑफ कोर्स फोकस जाएगा ना, फोकस कैसे नहीं जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जाना। प्लस हमारा तो मॉक्स है ही एनमैट का, आप लोग को एनमैट के वेबसाइट से जो एनमैट के मॉक्स और मटेरियल उसको भी खरीद लेना चाहिए। वही लोग पेपर बना रहे हैं, वही लोग पेपर करा रहे हैं, वही लोग पेपर का किताब भी बेच रहे हैं, तो आप खरीद लो। बिकॉज वो जो गाइड बेच रहा है, जो भी मॉक टेस्ट आपको देगा, तो जाहिर सी बात है उससे क्वेश्चंस भी देगा, तभी वो बेच रहा है। तो एनमैट में वो करो। इंग्लिश में तो कैट का प्रिपरेशन में ही वोकैबुलरी आपको अच्छा से करना है, तो थोड़े वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट में। ईडीएम फ्रेजेस, फॉरेन टर्म्स, सिमिलीज, ये सब कैट के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, आपको पढ़ाया जा रहा है। सो द आइडिया इज next 60 days fill the forms. I will take one more session on B school selection, MBA institute selection, but the important thing is 60 days cat. In cat be very particular what you want, because सबका अलग है ना। 100 परसेंटाइल जिसको चाहिए उसका अलग तैयारी, 99 का अलग, 95 का अलग, 92 93 का अलग। वैसे ही आपको अपना प्लान बनाना होगा। जो बच्चे अभी अच्छे से नहीं अपना तैयारी किए हैं, कोई टेस्ट लेने की हड़बड़ी नहीं है कि कल परसों से ही टेस्ट लेना। अगर आप टेस्ट तभी लोगे ना जब आप थोड़ी तैयारी करोगे। ये तो वैसे ही है कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का सीधे ही गया, कंपटीशन में ही भाग ले लिया और पूरा का पूरा बॉडी तोड़वा के आ गया। You need to practice, you need to practice, you need to practice. There is no hurry. Even if you start test taking in the taking tests in the last 30 days, it is good enough. Even if you take 20 tests in the last 30 days, even if you properly take 15 tests in the last 30 days, analyze it well, still you will get a very very good percentile. Plus जो मेरे IT के students हैं या फिर other top students हैं जो 100 percentile, आस्था and ध्रुव and पीयूष and many other and भावप्रीत and all, उनके लिए ये सजेशन है कि आप 100 परसेंटाइल भी लाना चाह रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे कर डालो, ये गलत है। सारे करने की कोशिश करो, लेकिन उसमें भी आपको वो ब्लॉक्स बना के करना, राउंड्स बना के करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो 40 मिनट में अगर आप कोई ईगो पे लेके सेट करने पे लगे कि नहीं ये करेंगे करेंगे करेंगे, तो 40 मिनट बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। This thing to not get stuck in a question or a set or a passage is very very important. आरसी में उतना तकलीफ नहीं होता है जितना डीएलआर के सेट में होता है, बिकॉज आप अगर बहुत आरसी प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो आप जब पहला पैराग्राफ पढ़ते हो तो आपको समझ आने लगता है कि भाई ये अभी करें कि बाद में करें। बट रीजनिंग में थोड़ा आपको पढ़ना पड़ता है, थोड़ा समझना पड़ता है। ऑफ कोर्स जो सेट्स फेमिलियर सेट्स कर रहे हैं उनको आप पहले करने की कोशिश करोगे, लेकिन इट्स नॉट कंपलसरी कि सारे सेट्स फेमिलियर हो। So you have to be a little brave, you have to be a little fast, you have to be a little accurate. I hope I was able to add some value. बहुत सारे in private बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। First and foremost we will pass the presentation to Rishabh. Rishabh is क्या बताऊं, मतलब he, even though I am a senior, he's like a friend also, and the new generation, the new age, where people understand the value of soft skills as well as hard skills, where they understand the value of technology as well as people management. So he is someone who understands these things, and I know that he's going to do very very big. I talked to him in the morning and I was very happy to know that despite
अभी जो IIM का प्रोग्राम है ऑनलाइन चल रहा है, ये बच्चे गए तो है नहीं कैंपस में, बट ही हैज सो मेनी गुड थिंग्स टू टॉक अबाउट। बोल रहा है कि सर हमें जो मैथ्स पढ़ा रहा है तो उसका नाम नोबेल प्राइज में गया हुआ है, और बच्चे लोग में क्या पॉजिटिव कंपटीशन है, और बच्चा ड्रामा करे, प्ले करे या पढ़ाई करे या कुछ भी करे, IIM कैलकाटा में देयर इज अ टेंडेंसी टू गिव वंस बेस्ट, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा कंपटीशन है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, मतलब वी हैड प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू से। So I will basically pass the presentation to Rishabh. Sorry to keep you waiting. Thank you Rishabh, and nice background, aurora borealis, northern lights. Yeah. Hi guys. I think sir covered most of the things. I actually wanted to talk One point I about a missed. few things, but I think sir covered most of the things. Rishabh. I forgot to introduce Rishabh. Rishabh has got 100 percentile in quant, as well as he has got an overall 99.91 or 99.93 percentile, and he has successfully converted his Calcutta call. He's studying in IIM Calcutta. He's good with academics as well as good with teaching. So it's a very rare combination. मतलब बहुत लोग अच्छा पढ़ा सकते हैं, but अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते, बहुत लोग मार्क्स ला सकते हैं लेकिन वो समझा नहीं सकते हैं. So he has this rare gift of being good on both sides. Sorry, you can go ahead now. Thank you. Yeah, thank you, sir. Thank you. That was a very kind introduction. Okay, yeah, I just actually I think sir covered most of the topic whatever he wanted to. I just want to cover just two things. One of those is actually was sir mentioned that a lot of people, a lot of you guys have actually want to drop out because there's a change. Actually a change in the pattern. I believe it or not, it's actually a good thing. I think I don't know how many of you follow Game of Thrones. There's a very famous quote from that chaos is a ladder. That actually applies here, because just like if you are thinking that let's drop out this year because there's a lot of uncertainty, a lot of people are doing the same thing. Chaos is actually a ladder, because a lot of people are not going to prepare, because a lot of people don't actually get to prepare क्योंकि examination नहीं हो पा रहा है. There's a lot of people कि अरे pattern बेकार है. If you can focus at this time, it would be a lot more rewarding than in any regular time. So believe me, this is the best time to prepare if you want to go for it, because there's a lot of uncertainty, and because of uncertainty, there's a possibility that a lot of people who might be better than you at some particular day are not even trying, or actually going to drop out. Don't just give up. This is actually a good thing that that thing has happened. And the second thing which I really wanted to focus here, after that I will take questions, whatever you want to. Second thing which I want to cut, that because the time has reduced from 1 hour to 40 minutes, and as sir mentioned that there would be no warm up to, and this is very serious, because if you let quants एक बार के लिए side करते हैं, let's talk about LRDI. If you take a wrong set, if you choose a wrong set, there is no chance that you're going to recover, because a wrong set can easily eat up 15 to 20 minutes. बहुत मुश्किल हो जाएगा कि तुम वहां से recover कर पाओ या फिर उसके आगे जा पाओ. तो make sure कि तुम्हारा जो judgment part है, that is just as good as your solving part. अगर judgment part हल्का सा भी weak है, बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली. The only thing that has changed in this particular year from 1 hour to 30-40 minutes, that you cannot do a wrong judgment on that day. A wrong judgment on a regular day for a regular cat, this 1 घंटे का होता है, might decrease your percentile from 99 to 97. This year it might decrease to 99 to 60 or maybe 70 percentile. तो make sure कि ये गलती नहीं करना है. Make sure that you जब भी, और इसका बहुत simple सा rule है, there are about 60 days. In 60 days you are going to solve a lot of sets. Just do one thing. Whenever you read a set, before solving it, give your judgment on that set. Easy है, medium है, hard है. Just do that. This is more than enough, because again, nobody can teach you what judgment is. No teacher can teach you what judgment is. Judgment is skill. How to analyze what this particular, what is the difficulty level of this set is actually a skill. Just do it. Don't do it as LRDI. Do it with every question that you're going to solve. Again, you read a question. After reading the question, take more 5-6 seconds. Give your judgment. कि क्वेश्चन इजी है, डिफिकल्ट है, सेट इजी है, डिफिकल्ट है, मीडियम है.
खाली उसके ऊपर लिख ही दो EMH और देखो उसके बाद सॉल्व करने पे क्या तुम्हारा जजमेंट सही था। अगेन अगर जजमेंट सही था वेल एंड गुड, गलत होगा तो यू विल रियलाइज कि गलत क्या हुआ एंड यू विल गेट बेटर. You can only get better. Again, हर बार judgment. Make sure to do this with every question because this time judgment is just as important as any other solving or any other conceptual part. These were the two things which I actually wanted to cover because there was no warm up, there is no room for any compensation. So make sure. I think I can take a few questions. I don't know how much time do I have here. So let's take anybody who can come online and or you can put your questions in the chat. How to analyze RC? Okay, I can give you from an engineer's point of view. Okay, so I think engineers can relate to me. Like most engineers, I have a decent quantitative skills. I have LRD, would not be that much a problem. But RC, again, just like most of the engineers, I was weak at RC. I did just one thing. Whenever I solved any RC twice, that means एक बार अपने full speed में, जितनी speed हो सके उतने speed में, कि एक आरसी को मैंने एक बार में पूरा जितना हो सके, या आई विल गेट टू रीडिंग रिसोर्सेज, जितने स्पीड से हो सके उतने स्पीड से मैंने पूरा सॉल्व कर लिया उसके बाद से, और सारे क्वेश्चंस मार्क कर लिए. बट विदाउट सीइंग द आंसर आई सॉल्व दैट सेट वन मोर टाइम, कि एक बार फिर से पूरा सेट सॉल्व किया, इस बार धीरे धीरे आराम से पढ़ते हुए, एंड देन अगेन वही क्वेश्चन सॉल्व किया. तो आई रेड दैट पर्टिकुलर सेट इतना धीरे धीरे कि मैंने हर एक पॉइंट अच्छे से पढ़ा. पहली बार मैंने बहुत स्कैम रीडिंग की थी, तो मुझे एक्चुअली कोई क्वेश्चन गलत हुआ होगा तो मुझे खुद से अपनी गलती दिखने लग जाएगी, rather than a book or answer telling me कि मैंने क्या गलत कर दिया था. यहाँ पे मुझे एक्चुअली मेरी खुद की गलती दिख रही है कि हाँ मैंने ये गलत किया था, और क्यों गलत किया था, बिकॉज आई एक्चुअली skipped from more important point. So after doing this for about 2 months or maybe 1.5 months, 2 months, I actually realized कि हाँ कैसे स्कैम रीडिंग करनी है, कि कहाँ पे स्लो होना है, कहाँ पे तेज पढ़ना है. Because everything is again just these are like skills. You cannot do a scan reading on a first attempt, even though कि तुम्हारी speed, but you will again miss on the smaller parts. तो ये पार्ट तुम हर सेट को, मैं तो ये करता था कि हर सेट को 2 बार सॉल्व करता था, कि एक बार इजी और एक बार धीरे धीरे. This actually helped me to realize कि कहाँ पे स्लो होना है, कहाँ पे तेज होना है, actually on maintaining my speed. For reading material, I think a drive link which I think sir have shared or will share. It has a lot of data. There's a book on RC for GMAT, Manhattan Prep. Do read that book. It's 150 pages, and it is one of those books जिसको read करने के just next day you will feel that you have improved in RC. Hindu, yes, you can read anyone, any newspaper would do. Just it's more or less like to improve your speed and to get to know what is actually happening about. Actually, I'm not able to, guys. Let me take a few more questions. Data sufficiency, I don't think data sufficiency. No, data sufficiency is not in CAT. It comes only in XAT and other examinations. QA improvement, just solve as many as questions. Make sure that, see, क्या कहते हैं, QA is divided into 2 parts. First is 50% from arithmetic. Next is 50% from everything else. First 50% from arithmetic is something which you read up to your 8th grade. तो make sure कि जब तक 8th grade तक तुम कर रहे हो, कोई 8th grade, obviously एक बार सोच के देखो 8th grade तक के क्वेश्चंस कितने डिफिकल्ट बनाए जा सकते हैं. तो जस्ट बी श्योर कि तुम्हारा अर्थमेटिक का जो पहला 50% पार्ट है वो एकदम रॉक्स सॉलिड होना चाहिए. इफ योर अर्थमेटिक इज वीक, इररेस्पेक्टिव तुम्हारा बाकी सेक्शन कितना भी स्ट्रांग हो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ गुड परसेंटाइल. तो इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक कि पहला तो अर्थमेटिक तुम्हारा इतना स्ट्रांग होना चाहिए दैट यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन. अर्थमेटिक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए. यू हैव मेक श्योर कि अर्थमेटिक गलत ना हो. मेक श्योर कि अर्थमेटिक इतनी प्रैक्टिस कर लो दैट यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इसका क्वेश्चन कुछ भी आ जाए. That 50% marks in quant can fetch you a 99 percentile, and that should be your base. You cannot swing for 100 percentile on a first go. You should make sure that you have a base of 98 to 99 percentile. That is very important.
उसके बाद से अगर ये हो जा रहा है, यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, तो मेक श्योर कि उसकी स्पीड इंक्रीज करो, कि वो जो तुम 30 क्वेश्चन है उसको जितना, वो जो 50% क्वेश्चन को जितना कम टाइम में करो, और जो बचा हुआ टाइम है उसमें यू कैन डू योर ज्योमेट्री, यू कैन डू योर algebra, you can do any chapter, you can do anything you want, but make sure constant which order you have to go about algebra. Algebra, take the small topics first, no? Like simple equation, like go with special equation, go with simple equation, go with go with sequence series. These are not very difficult. For LRDI, there is no other options. The LRDI, you have to practice. You practice as much as you can. Just start to enjoy LRDI. There's no other tips. Start to enjoy LRDI. First tip, and second tip, जो मैंने पहले बोल के रखा हुआ है, just do a judgment call on every set that you take. पहले set पढ़ो, उसका judgment दो, उसके बाद से solve करो. Because अगर गलत judgment दे दिया किसी set पे, तो that might cost you your chance this year. It might actually cost you an year. So LRDI, just practice as much as you can and start to enjoy. Don't fear that particular LRDI. I have actually feared LRDI all my life. So I will just give you one advice. Don't get with fear. Just enjoy it. Just see ना. Just for example, if you give a puzzle, if पहेली type का कुछ छोटे बच्चों को दोगे उसके level का, that छोटा बच्चा will actually enjoy. Don't kill that छोटा बच्चा in yourself. To make sure कि you enjoy that LRDI. Every set that you solve, because you're not going to solve a lot more उसके बाद से भी. VARC, I have already said a lot कि VARC, there's just one thing, just not VA, I don't know about VA you can practice on your own. I don't want to give any tips on VA because it might actually backfire. For RC, I can give you, can read that book which I have suggested. It is in the drive, which sir will share the link. And the second thing is, you can follow this or not. This was my experience that I solved every RC twice, which actually helped me develop कि कैसे मैं मेरी खुद की गलती मुझे दिखने लग गई, तो I actually improved on that. Why you missed 100? Because 100 is not in my control. It's not actually in anybody's control. You can actually give your best on that particular day. Yeah, that's a 2-hour session. If you want to maintain intensity, do one thing. Last के जब हो, जब start, when the November starts, do 2 to 3 times that you give 2 tests back to back. एक test दिया, 5 मिनट का break लिया, फिर उसका साथ next test और दे दिया. It will help you to gain stamina enough to actually go through your test. Sakshi, you should study in a manner that you should give your best. That you should be satisfied by whatever you want to do. That it should not feel like कि मैं और कर सकता था या मैं और कर सकती थी. It should not feel like that. If you feel like that, you will automatically score a well enough percentile to go to almost any exam. For non-maths, it's just make sure arithmetic तो यार 8th class तक पढ़े ही हो ना, 8th class 10th class तक पढ़े हो, इनफैक्ट 2 क्लास आगे तक पढ़े हो जहां तक आता है, तो एटलीस्ट उतना तो कर लो. 50% पेपर will fetch you 98. अच्छा, मैं अपना देता हूँ. I'm weak in obviously LR, just like I've said. VARC, I'm weak in LRC. I scored a 99.9 plus percentile and I got 97 in, I think, VARC. So it doesn't matter. You don't have to score a 99.9 in every part. If you score a 99.9 or 99.8 in 2 and got a 97 or 98 in other, you will score a percentile which can get you in any college, and that is actually the final goal. So just make sure that you just don't focus कि अगर हाँ ठीक, obviously if you're not from a maths background, तो at least quant तो करो, पहले तो quant का वो arithmetic part तो करो, that will actually guarantee you a 98-99 percentile. अगर उसमें 98-99 आ गया, you're not from a math background, do something extra in VARC. Make sure some extra marks later on. You don't have to beat an IIT and in maths on that party. You have to beat him on an overall score. I am gonna go see. It's ABC. Everybody is okay. I hope that should. What should you study, sir? Actually, I've covered this. Is it logical to attempt? No, you should attempt every easy question. You have to make sure that no easy question is left. There is no important topic for DILR as of now. Earlier it used to be a Venn diagram, but now it isn't. Now there isn't any topic. They just go around. Okay, I think I have covered most of the topics. I will pass on the button to Ashish sir again.
Sir, I don't think you are audible. Now I'm audible. Am I audible? Yes. Okay. Yeah, you're So audible. a lot of questions have been posted that I've been reading. For example, IIT. So IIT भी तो IIT बॉम्बे है, फिर IIT दिल्ली है, फिर IIT खड़गपुर है, फिर IIT चेन्नई है. तो ये 4 IIT ठीक है जाने के लिए, सब अलग अलग लेवल पे हैं. तो I will be anyway sending a detailed Excel sheet जिसमें जितने भी टॉप 100 MBA इंस्टीट्यूट्स है कंट्री के, उनका क्या एग्जाम है, उनका क्या कट ऑफ परसेंटाइल है, कितने सीट्स हैं, क्या रिजर्वेशन है कि नहीं है, फीस क्या है, लेटेस्ट प्लेसमेंट्स क्या. आई विल बी एनीवे सेंडिंग इट टू यू. और जैसे आईआईटी है, आईआईटी का तो फॉर्म निकलता है जनवरी में, तुम्हें हड़बड़ाना नहीं है अभी. वी विल बी हैविंग अ सेपरेट सेशन ऑन MBA इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन एंड विल बी शेयरिंग द एंटायर डेटा. अभी एग्जाम्स के फॉर्म निकलते हैं, MBA इंस्टीट्यूट्स के नहीं निकलते हैं. MBA इंस्टीट्यूट्स के जब निकलेंगे, we will be sending it to you. और कट ऑफ कैसा होता है, अब आईआईटी बॉम्बे बेस्ट है, आईआईटी में तो कट ऑफ ज्यादा है, उसके बाद आईआईटी दिल्ली का कट ऑफ है, उसके बाद वैसे ही कट ऑफ भी जितना अच्छा इंस्टीट्यूट होगा उतना अच्छा कट ऑफ होगा. प्लस मैंने देखा आईपीएम को लेके भी डाउट पूछे हैं. ऑफ कोर्स आईपीएम IIM इंदौर का जो प्रोग्राम है 5 ईयर का इंटीग्रेटेड MBA प्रोग्राम आफ्टर स्कूल, ये कंट्री का बेस्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है. हर साल हमारे यहाँ सिलेक्शन होता है, इस साल भी सिलेक्शन हुआ है, तो उसका अलग हम गाइडेंस देंगे. आई विल बी शेयरिंग, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव माय नंबर, बिकॉज़ सबके डाउट्स अलग तरह के हैं तो बाकी बच्चे बोर हो जाएंगे. मैं क्या आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आज नहीं, आप सब अपने डाउट्स मुझे कल टेलीग्राम करो. मेरा जो नंबर है वो है 8, if you can type it Sarthak for those students who don't have my number, 89489 66663, 89489 66663. So you guys can telegram me your doubt or WhatsApp me your doubt, and tomorrow I'll be clearing all the doubts. अगर मुझे लगता है टेक्स्ट से sufficient नहीं होगा, then I will call you also and I will discuss whatever doubts you have. So don't worry about it. I am available 24/7 for the next 60 days to help you in giving a knockout punch to CAT, new CAT 20 pattern. Fit रहें, रूटीन मैनेज करें. कल एक मैंने वीडियो भेजा था, हमारी एक स्टूडेंट है शुभांगी अवस्थी, तो उसका ऑल इंडिया रैंक 2 है आईपीएम में, तो इस साल आया. तो उसका वीडियो में देखो क्या बोल रही है कि टाइम टेबल को फॉलो करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज हम लोग जनरली टाइम टेबल को फॉलो नहीं करते हैं. तो ये कैट के बच्चों के लिए खास तौर पे लागू होता है, बिकॉज आप बड़े बच्चे हो, आपको मतलब ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है लाइफ में स्कूल के बच्चों के कंपैरिजन में. सो अपने डिस्ट्रैक्शंस को क्लोज करना, टाइम टेबल फॉलो करना, ये अभी इंपॉर्टेंट है. ये नहीं बोलूंगा कि अभी से कोई शुरू करे, कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है तो क्या वो पढ़ के 100% आ सकता, उतना तो मैं नहीं बोझ करूंगा. बट इतना बोलूंगा कि अगर आप आज से भी बहुत मेहनत करते हैं आने वाले 60 दिनों, तो आपका इतना अच्छा परसेंटाइल आएगा कि आपका जो ड्रीम इंस्टीट्यूट है वो आपको मिल जाएगा. दैट इज व्हाट इज देयर. सो प्लीज focus on your preparation. I'll be sending an Excel for B school selection. जो बच्चों को बहुत ज्यादा ही एक्साइटमेंट है जानने के लिए कि पिछले 4 साल में कैट का क्या ब्रेकअप रहा है टॉपिक वाइज, उनको मुझसे पर्सनली आके ये पूछना होगा, मिलना होगा. बिकॉज जैसा मैंने बोला, मुझे जेल जाने का कोई शौक नहीं है. मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट 60 days I am in front of you so that I can guide you if you want to meet me. So thank you, thanks to Rishabh also. I expect IIM Calcutta में भी टॉप करे, जैसे कैट वगैरह एग्जामिनेशन में टॉप करता है, नाम रोशन करे. यूपी is having a lot of talent. यूपी बिहार के बच्चों में बहुत टैलेंट है. हर साल नेशनल टॉपर्स स्कूल की हम बात करें, 10th की बात करें, 12th की बात करें, कैट की बात करें, जेई की बात करें, यू विल सी बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ से आता है. इट इज बिकॉज द स्टूडेंट्स आर मोर हार्ड वर्किंग एंड पैशनेट. तो यूज योर हार्ड वर्क, यूज योर पैशन. थैंक यू. And telegram me, WhatsApp me if you have any more doubt, and you can also come to the Mahanagar Center if you want. Thank you guys. Good night.